Udan Saluters is hosting the leadership lessons from Ramayana. As we all know, Ramayana and the Lord Ram holds a very big significance in part of each Indian. There are lots of things to be learned from Ramayana. So without taking much of the time, now I'll proceed to introduce the speaker for the day, Mr. Rishi Nanda. And I'm very sure today's session is going to be a very interactive one, as usual, what Mr. Nanda does. It's not a monologue, but it's always a two-way traffic. So I'll request all the participants, please keep on punching in the question and answer section in the Zoom app, and also whoever is watching us through social media live, to put their queries, their thoughts, their suggestions over there. Now, Mr. Rishi Nanda, as we are blessed that we have a speaker like Mr. Rishi Nanda, who apart from having a good corporate experience, he is also one of the unique spiritualists of the country. He is also a facilitator, a mythologist, a tarot card reader, and he speaks for various corporate and non-corporate entities on diverse topics, including spiritualism. His mythological knowledge and practical life experience makes him connect and understand various personalities and train in a simple yet powerful manner that has a long-lasting effect on the individual. Till now, you would have held around more than 500 sessions across more than 50 cities, more than 20,000 participants, 25 different categories of industries, more than 100 organizations. He has done his master's in International Management Institute. He has done his master's in commerce. He also has a diploma in human resource management, diploma in advertising and public relations, and he is also author of the best-selling book, Break Your Leadership Chakravyu, Stories and Learnings from Indian Mythology. Mr. Nanda, I welcome you today, and I also thank you that you have agreed to come and speak to our audience and to the public at large. So now it's all yours, and it is for you to take it forward. Thank you, sir. Thank you so much again, and thank you, for members for joining, and those who will be watching this video. Thank you so much. Rishikesh sir ne kaha, कि thank you for joining and speaking, on Ramayana. To be honest, before I start, I would genuinely like to, with full humbleness and gratitude, I would like to thank, the Almighty Lord Rama himself for giving me this opportunity to speak about. I don't think so कि जैसे I stand anywhere, उनके कदमों की धूल भी नहीं है, मैं तो हूँ, और फिर भी मुझे मौका मिल रहा है और कुछ लोग सुनने भी आए हैं, तो I really feel blessed with that opportunity itself only. मुझे जब भी कोई भी मौका मिलता है जहाँ पे मैं किसी भी कोई भी भगवान देवी देवता के बारे में बात करने के लिए को बुलाता है, मैं हमेशा आई ट्राई टू एडजस्ट माय एंटायर शेड्यूल सो दैट आई कैन स्पीक, बिकॉज उसमें मुझे लगता है कि वो एक भगवान का आशीर्वाद है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि मुझे वो मौका मिल रहा है बात करने का. सो सर फर्स्ट प्लीज डोंट थैंक मी, इट्स आई फील रियली एम्बैरेस्ड. सो इट्स ऑल अबाउट द ऑलमाइटी, इट्स ऑल अबाउट लॉर्ड रामा दैट वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट. So let's start from here. Okay, we'll keep so ये आज का जो सेशन है, हमने उसको थोड़ा एक अलग डिजाइन भी किया है. We have kept it crisp, we have kept it very concise, but हमने पूरी फ्लो ऑफ स्टोरी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो हम लर्निंग्स अगर आप रामायण में देखेंगे तो अनगिनत है. मुझे नहीं लगता कि किसी मेरे जैसे व्यक्ति का एक जीवन भी क्या कहते हैं, मैं वो लर्निंग से डिकोड कर पाऊँ या समझ पाऊँ. कई जन्म लगते हैं, तो मुझे ऐसे कभी कभी लगता है कि कई जन्मों का शायद आशीर्वाद है कि अब जाके को थोड़ी लर्निंग समझ में आती है, जो सीखी है समझी है मेरे एल्डर्स से, रिलेटिव से, फैमिली फ्रेंड से, किताबों से, सबसे, वही अब मैं आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ. फर्स्ट थिंग बिफोर आई स्टार्ट, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट रामायण, इट्स ऑल अबाउट लॉर्ड रामा. अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी, अगर आपको मेरे कोई भी लर्निंग अच्छी लगी जो हमने शेयर की, उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा क्रेडिट हमारे गुरुओं को जाता है, वाल्मीकि जी को जाता है, या तुलसीदास जी को जाता है, या जितने भी लोगों ने उनके पोसेशंस लिए है, जो भी महर्षि, उन सबको क्रेडिट जाता है. फॉर्चुनेटली आई कुड बिकम द फेस एंड वॉइस फॉर जस्ट कमिंग 1 hour, बट ये सब उनकी मेहनत है, जो उन्होंने इतनी ब्यूटीफुली वो बुक्स लिखी है, इतनी ब्यूटीफुली वो इंटरप्रिटेशंस लिखी है, इतनी ब्यूटीफुली वो लर्निंग शेयर की है.
इन केस अगर आपको कोई लर्निंग अच्छी नहीं लगती है, अगर आपको लगता है कि ये गलत वे में कह दिया है, तो वो गलती का जो उसका क्रेडिट मैं लेना चाहूंगा कि मुझसे गलती हुई है. बट स्टैंड अलोन द बुक्स आर ब्यूटीफुल, द स्टैंड अलोन द बुक्स आर फुल ऑफ लर्निंग, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द बुक्स और लर्निंग. सो इन केस एनीथिंग गोज रॉन्ग, आई विल टेक दैट क्रेडिट. So on this note, let's start the learnings from Ramayana. अब पहले हम लोग समझने से पहले रामायण के बारे में बात करने से पहले हमको एक और चीज देखनी है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हमारे एपिक्स का सिग्निफिकेंस क्या है. व्हाई शुड वी लर्न फ्रॉम आवर एपिक्स? Why should we learn from our Sanatan Dharma? Why should we learn from our ancient Indian history, or popularly called as Indian mythology? जो आपको कहना है आप उसे कह सकते हैं, बट उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि ऐसा मेरा मानना है, जब भी हम कोई भी चीज करते हैं लाइफ में, कोई भी चीज पढ़ने के लिए स्पेशली करते हैं, सीखने के लिए करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि why should I learn from the epics? Lot of people across India, usually check with me, जब उनको पता चलता है, when I travel, when I interact with them, जिनको नहीं पता होता है हमारा काम क्या है, तो मुझे पूछते हैं कि ऋषि सच्ची में ये तुम्हारा काम है? मैंने हाँ, ये हमारा काम है. बोलते हैं आज की डेट में भी ये बुक्स का क्या पर्पस है, इसमें कुछ सीखने को मिलता है जो आज की डेट में रेलिवेंट है. सो it's that question itself is so amazing. And it's out of inquisitiveness. They're not demeaning the books, but they're just trying to be out of inquisitiveness. And I usually share a lot of answers, and a lot of discussion happens over with them. बट अभी हाल ही में मैंने एक सेशन अटेंड किया था, और जहाँ पे मुझे ये बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर वे में समझ में आया कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आवर एपिक्स. अब क्या होता है कि दुनिया में चार प्रकार के लोग होते हैं. एक जो एजुकेटेड होते हैं, बट दे आर एजुकेटेड ऑन पेपर, they are not intelligent, they don't know what to do with the education. Second, intelligent people, they will apply their brains, but it will be within the boundaries. So they are not wise. They could be because of lack of experience, or because of a lack of further implementation with their own imagination. So they are not wise. They don't know कब चुप बैठना चाहिए, कब क्या करना चाहिए. उनको जितना बोला गया उतना वो करेंगे, थोड़ा बहुत काइजन थ्योरी अप्लाई करके थोड़ा इंप्रूवमेंट कर देंगे. फिर आते हैं वाइज. Now these wise people, they've got a lot of knowledge, but their consciousness is not fully they don't have full consciousness, so therefore they're not enlightened. Last are enlightened. And enlightened would be Lord Rama, enlightened would be Lord Krishna, enlightened would be Lord Mahavir, would be Lord Buddha, and there are so many such beautiful gods, deities that we have in our books. So what happens is, मुझको क्या चाहिए जिंदगी में? मुझको चाहिए है कि विजडम मिले, knowledge मिले. How can I handle my life? How can I handle my senses? How can I control my senses? And how can I interact with people around me? And how can I handle them also? That basically requires a lot of enlightenment, where I have got full control over my senses. Till the time I don't read these books, it could be Vishnu Puran, Shiv Puran, Bhagavatam, Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita, about the life of Lord Buddha, about the life of Lord Mahavir. जब तक मैं सब किताबें नहीं पढ़ूंगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि enlightened लोग करते क्या है, कैसे उनको enlightenment मिली है. So these books have beautifully captured the do's and don'ts of life. Correct? Second thing मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी जैसे हमें जिंदगी मिली है, ठीक है, तो हमें जब जिंदगी मिली है तो we are really blessed, we are really lucky कि हम लोग को कई सारी किताबें भी मिली हैं. It could be ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद, it could be महाभारत और रामायण, जिसके अंदर हमको बताया गया कि जिंदगी को जीते कैसे है. रामायण is one of those epics. Now second is, रामायण को हम हमेशा इतिहास कहते हैं, महाभारत को इतिहास कहते हैं. Correct? Puranas could be stories, it could be collated stories of couple of gods, deities and all, but इन दोनों को हम specifically इतिहास कहते हैं. The reason is कि there is someone who has witnessed it. So there is Valmiki, sage Valmiki, who has witnessed कि रामायण हुई थी, मैं था और ये ऐसा ही हुआ था. करेक्ट? तो वहां पे वाल्मीकि जी कहेंगे कि मैंने देखा है रामायण होते हुए. और कई सारे हमको यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में हमको कई सारे ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे हमको यकीन होता है जाके देख के कि हाँ ओके, यहाँ पे लॉर्ड रामा रहे होंगे, ट्रैवल किया होगा या कुछ होएगा. सो ये इतिहास है. करेक्ट? नाउ कमिंग टू द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉर्ड रामा. तो ये तो हुआ एपिक्स का. अब आते लॉर्ड रामा पे. ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉर्ड रामा? आई होप ऑल कैन हियर मी बिकॉज़ आई जस्ट रिसीव्ड अ कमेंट, वॉइस इज लो. Yeah, we can hear you. Okay,
फेयर इनफ, ओके। सो आते हैं फिर, अभी हम लोग आते हैं लॉर्ड रामा के सिग्निफिकेंस पे। अगर आप देखेंगे लॉर्ड रामा के सिग्निफिकेंस को समझ हमको 2 मिनट खाली लॉर्ड कृष्णा के बारे में बात करनी पड़ेगी, तब जाके हमको रियल सिग्निफिकेंस पता चलता है लॉर्ड रामा का। स्टैंड अलोन भी इनका बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सिग्निफिकेंस है, बट टू अंडरस्टैंड द रियल सिग्निफिकेंस वील हैव टू गेट लॉर्ड कृष्णा इनटू द कन्वर्सेशन। अगर आप लॉर्ड कृष्णा के बारे में पढ़ेंगे, अगर आपने भगवतम पढ़ी होगी या आपने लॉर्ड कृष्णा की जिंदगी के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने एक चीज नोट की होगी कि लॉर्ड कृष्णा जो है बचपन से इतनी लीलाएं करते थे। कभी पूतना को मार दिया, कंस को मार दिया, अलग अलग उन्होंने चमत्कार दिखाए। कभी गोवर्धन पहाड़ उठा दिया, कालिया के ऊपर डांस कर दिया, इतने उन्होंने चमत्कार दिखाए। द्रौपदी को बचा दिया, अपना विष्णु अवतार दिखा दिया अर्जुन को, कि हम कन्विंस्ड है, विच obviously he doesn't need to convince us, but हमको पता है बचपन से ही ये भगवान है या भगवान का रूप आते हैं। करेक्ट? इतनी उन्होंने लीलाएं की है कि बचपन से ही हमको पता है कि दिस इज बियॉन्ड ह्यूमन बीइंग्स, ही इज गॉड, ही इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ गॉड। नाउ कमिंग टू लॉर्ड रामा। लॉर्ड रामा की अगर आप पूरी रामायण बारीकी से पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो किधर भी आपको ना ऐसा कोई चमत्कार नहीं दिखेगा जो लॉर्ड रामा ने किया है। किधर भी आपको ऐसा चमत्कार नहीं दिखेगा जिसको देख के आपको लगेगा अरे ये तो भगवान है, चमत्कारी है, कभी भी नहीं ऐसा दिखेगा। उसका एक कारण है, लॉर्ड रामा जो है वो मानव अवतार है लॉर्ड विष्णु के। तो जो भी उन्होंने किया है, जो भी कार्य उन्होंने किया है, दैट इज पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू डू। It is tough, but it is possible, and it is possible for us to do. Now, why he's a मानव अवतार? Okay, एक वो भी एक जरा बैक स्टोरी समझते हैं, क्योंकि रावण जो थे वो बहुत ज्ञानी थे, बड़े महापंडित थे, उन्होंने बड़ी तपस्या की थी, ब्रह्मा जी के पोते थे, और उनके पास एक आशीर्वाद था कि उन्हें कोई भी देवी देवता भगवान नहीं मार सकता है, क्योंकि एक लूपहोल छोड़ना होता है, इमॉर्टल नहीं का आशीर्वाद नहीं मिलता, तो उन्होंने इंसान को छोड़ दिया था पूरे आशीर्वाद में। आशीर्वाद में ओके, रावण को कोई नहीं मार सकता था सिवाय इंसान के। तो इसके लिए विष्णु देवता मानव रूप में आते हैं, मानव रूप में आते हैं, और राम जी बनकर आके अंदर जाते हैं। उस वक्त वहां पे लॉर्ड विष्णु आते हैं, वरना पूरी रामायण में किधर भी ऐसा वर्णन नहीं है जो विष्णु में ही भगवान है। इनफैक्ट एक कॉन्वर्सेशन Rishi, there is some lag at your end. I'll request participant to just hold on his relogging. Can you just come back for last 2 minutes, whatever you have said? I'll come back. I'll come back. So I'll just come back quickly on that. So you can see the slide, right? Yeah. तो sorry, I think there was some internet instability. तो यहाँ पे होता क्या कि प्रभु राम को वो सॉरी प्रभु विष्णु जो है वो राम जी के अवतार में आते, मानव अवतार में आते। तो इसके लिए पूरी रामायण में आप देखेंगे ना, किधर भी ऐसा कोई चमत्कार नहीं किया राम जी ने। इनफैक्ट वो एक ह्यूमन बीइंग के जैसे रोते भी है, हंसते भी है, कंट्रोल में भी रहते अपने एंगर में, और कभी अपना एंगर भी वो वेंट आउट करते हैं। जब उनके भाई को चोट लगती है तभी वो रोते हैं, और वो हनुमान जी को कहते हैं कि हनुमान जी मुझे मेरे लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी ले आओ। आप सोचिए कि भगवान किसी को कह रहे हैं, और जब हनुमान जी लाते तो कहते कि अब आज से मैं तुम्हें संकट मोचन हनुमान कहूंगा। तो ऐसी कई सारी जगहों पे हमें पता चलता है कि व्हाट लॉर्ड विष्णु हैज डन इन दिस अवतार इज ही हैज कम इन अ ह्यूमन फॉर्म। देयरफॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉर्ड रामा इज सो मच, और इसके लिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। सो दिस इज जस्ट द कॉन्टेक्स्ट। सो नाउ लेट्स गेट इनटू the understanding of the session that we have right now, which is leadership lessons or learnings from Ramayana and Lord Rama. हमने इनको दो चीज में स्प्लिट किया है। एक है सेल्फ मैनेजमेंट, दैट इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन एक्शन, जो हम सीखेंगे स्टोरीज के माध्यम से, और दूसरा जो है टीम मैनेजमेंट के द एबिलिटी टू एडमिनिस्ट्रेट, coordinate and guide a group to perform a task or achieve a goal, something. So it is individual behavior and also leadership and team management that takes place over here. And Ramayana में तो भर भर के leadership qualities है. When we take sessions for corporates, मतलब they are also amazed कि आज की डेट में हमको जो challenges आ रहे हैं उनका solution ये रामायण में से कितनी beautifully correct होता है.
So without wasting any time, let's move ahead. अभी ये रामायण के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहानियां ही कहानियां होगी इस सेशन में। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेशन। राम जी का जन्म जन्म जब जन्म होता है, थोड़े बड़े हो जाते हैं, रफली ए टीनेजर, एक 16-17 साल के आप समझ सकते हैं, राम जी हो जाते हैं। तो उस वक्त गुरु विश्वामित्र आते हैं। विश्वामित्र आते हैं और महाराज दशरथ को कहते हैं कि मुझे ताड़का को मारने के लिए राम की आवश्यकता है, मुझे राम दे दो। अब ताड़का कौन? ताड़का इज ए डिमिनस। ताड़का मरीच की मम्मी होती है। मरीच कौन? जो गोल्डन डियर बन के आता है बाद में रावण के साथ। तो मतलब बहुत बड़ी राक्षसी है वो छोटी मोटी नहीं है। और यहाँ पे गुरु विश्वामित्र आके कहते हैं कि मुझे राम की आवश्यकता है, मुझे ताड़का को मारना है। अब महाराज धृतराष्ट्र कहते हैं कि राम जी तो छोटे से बालक है, उन्होंने कभी युद्ध नहीं किया और आप सीधा कह रहे हो कि ताड़का को मारना है। गुरु मैं चलता हूं आपके साथ, मेरी पूरी सेना चलती है आपके साथ, हम जाके ताड़का का सामना करेंगे, हम जाके ताड़का को मारेंगे, आप राम को मत लेके जाइए। गुरु विश्वामित्र कहते हैं दशरथ महाराज मुझे सिर्फ और सिर्फ राम की आवश्यकता है, तुम राम दे सकते हो तो दे दो वरना मैं चला। अब दशरथ महाराज भी एक डिलेमा में आ गए कि अब ये कैसा हो गया कि गुरु ने कुछ मांगा और मैं दे नहीं रहा हूं। और दशरथ महाराज की कोर्ट में एक और गुरु होते, गुरु वशिष्ठ। वो कहते हैं दशरथ महाराज को, जो उनके कुल गुरु होते हैं, वो कहते हैं दशरथ महाराज को कि देखिए अंत में तो महाराज आप ही डिसाइड करेंगे आपने करना क्या है, पर एक चीज आप जरा गौर कीजिए कि गुरु विश्वामित्र बहुत बड़े योद्धा रह चुके हैं। उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का खुद वध किया है। मुझे लगता है कि जब हम राम को उनके साथ भेजेंगे तो राम को शस्त्र अस्त्र की विद्या देंगे और ऐसा उन्हें योद्धा बनाएंगे कि उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। और गुरु विश्वामित्र से अच्छा कोई गुरु तो राम के लिए हमें मिल ही नहीं सकता है। और गुरुदेव खुद आए हैं, तो विचार कीजिए। जब गुरु वशिष्ठ ये कहते हैं दशरथ महाराज को, तब दशरथ महाराज एग्री करते हैं और डिसाइड करते हैं कि मैं राम को भेजता हूँ। करेक्ट। अब यहाँ पे वो विश्वामित्र जी को कहते हैं कि आप जाइए गुरुदेव, आप जरा आराम कीजिए कक्ष में, मैं राम को भेजता हूँ। विश्वामित्र जाते हैं, बैठते हैं, और कुछ देर के बाद राम जी और लक्ष्मण जी जाते हैं और खटखटाते हैं दरवाजे पे। अब तक गुरुदेव और राम जी मिले नहीं है, ये ध्यान में रखिए, अब तक वो मिले नहीं है। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट कहूंगा, आप चैट बॉक्स में चाहिए या कमेंट सेक्शन में चाहिए, आप प्लीज उसका जवाब दीजिए, ठीक है। अब वहां पे गुरुदेव कमरे के अंदर, राम जी कमरे के बाहर, राम जी खटखटाते हैं, टक टक टक। गुरुदेव पूछते हैं कौन है। मान लीजिए आप राम हैं, आप प्रभु राम हैं, आप कमरे के बाहर हैं, आपने दरवाजा खटखटाया, गुरुदेव ने अंदर से पूछा कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? कौन है बताइए जरा, आप क्या जवाब देंगे? कोई अगर आपसे पूछता है आप कौन हो, तो आप क्या बताएंगे? करेक्ट, राइट। कोई कहता है मैं अपना नाम बताऊंगा, कोई कहेंगे मैं राम हूं। कई लोगों ने मुझे पहले भी कहा है कि जैसे हम कहेंगे हम दशरथ पुत्र राम है, आपने ताड़का को मारने के लिए मुझे बुलाया है, ऑल दोस थिंग, ऑल स्टेटमेंट। मैं आपका सेवक, आइए सेवक हूं, मैं राम हूं, ऐसे। बट यही डिफरेंस है मुझ में, आप में और प्रभु राम में, यही डिफरेंस है। पता है राम जी क्या कहते हैं? खटखटाते हैं और कहते हैं कि जब विश्वामित्र कहते हैं कौन है, वो कहते हैं गुरुदेव, गुरुदेव यही हम जानने आए हैं, हम कौन हैं। और गुरुदेव अंदर बैठ के कहते हैं लगता है राम आ गया, और राम जी को अंदर लेते हैं। Now look at this. This is such a small conversation, but what a beautiful learning Lord Rama has shared. He's saying कि गुरुदेव हम यही जानने आए हैं हम कौन हैं, आप बताइए हम कौन हैं। Because over here he does not use his designation. वो नहीं कहते कि मैं अयोध्या का राजकुमार हूं, मैं दशरथ का बेटा हूं, आपने मुझे बुलाया, ताड़का को मारने की आपको आवश्यकता है, इसके लिए नहीं, वो कोई भी अपना डेजिग्नेशन यूज नहीं करते हैं। बिकॉज उन्हें पता है कि जैसे मैं अपना डेजिग्नेशन यूज करूंगा तो मैं उनसे थोड़ा दूर हो जाऊंगा, और वो गुरु है और मुझे गुरु के चरण स्पर्श करके मुझे गुरु को सरेंडर करना है, तभी जाके गुरु मुझे ज्ञान बांटेंगे। राम जी जैसे
अगर आप देखेंगे वो अपने नाम को, वो अपने डेजिग्नेशन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, और आज की डेट में हम लोग अपने डेजिग्नेशन, अपना नाम, हम लोग इतना इंपॉर्टेंस उसको देते हैं. We are not ready to open at times also to learn to take feedback from someone. And over here, such a beautiful way, I don't know who I am, you have to tell me who I am. The first step for any leader to grow in life is that, self reflection is the key to success. Please don't use your designation left, right and center and start telling कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ. आप बताइए, आप बहुत बड़े होंगे, अच्छे हैं, बट जैसे आप अपने बारे में बड़ाई करना चालू करेंगे, आपके आसपास के लोग आपसे दूर हो जाते हैं. आपको नजदीकियां बढ़ानी है या आपको उनसे दूरियां बढ़ानी है, वो आप डिसाइड करते हैं. इसके लिए कहावत होती है ना, कई बार आपके घर में भी होती होगी, तो अगर जो भी हो, तुम घर के बाहर हो, घर के अंदर तुम मेरे बेटे या मेरे पति या मेरे भाई हो. जो भी तुम घर के बाहर, वो सर पे नहीं लेके आना घर के अंदर, जो है घर के बाहर. सेम गोज, व्हेन यू आर एट इंटरेक्टिंग विद पीपल, डोंट ट्राई टू यूज योर डेजिग्नेशन एट टाइम्स. जब कोई पूछता भी है तो बता दीजिए, इन अ हम्बल वे, बट डोंट ट्राई टू शो ऑफ. करेक्ट. So on this note, we'll move ahead. So let's be open, to receive information, to receive learning, and share learning so that we can all grow together. चलिए, किधर भी कोई क्वेश्चन आएगा, आप कमेंट बॉक्स में चैट करके पूछ सकते हैं. Anything you can keep on commenting also in chat, giving us feedback regularly. Now let's move ahead. अब यहाँ पे होता क्या, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है. राम जी बड़े होते हैं, सीता मैया का जाती है, और बाद में आई एम श्योर यू ऑल आर अवेयर के बाद में कई कई माता जो है वो 2 बूंद मांगती है महाराज दशरथ से. महाराज दशरथ को कहते हैं कि मुझे भरत को राजा बनाना है और आपको राम को 14 साल के लिए वनवास भेजना है. जैसे राम जी तैयार हो जाते हैं वनवास जाने के लिए, तो उनकी अर्धांगिनी सीता मैया कहती है कि मैं भी चलूंगी, आप मेरे पति हो, जिस हाल में आप रहोगे उस हाल में मैं रहूंगी. लक्ष्मण भी कहता है कि मैं भी आपकी सेवा करने के लिए चलूंगा. तो ये लोग तीनों फिर अयोध्या छोड़ के जाते हैं. और वहां पे जब जाते हैं तो वहां पे उनको नदी पार करनी होती है, एक पार से दूसरे पार में जाना होता है. करेक्ट. और वहां पे एक बोटमैन होता है, उनका नाम केवट होता है. और वो केवट उनको जाके कहता है कि प्रभु राम, अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो क्या मैं आपके पैर धो सकता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपके कदमों की धूल मेरी नाव पे पड़े. अब वहां पे सब हैरान, ये कैसा रिक्वेस्ट है, मतलब प्रभु के चरणों की धूल हमारे घर पे आए, जिंदगी संवर जाए, जन्मों जन्मों का हमें आशीर्वाद मिले, और यहाँ पे ये कह रहा है कि मेरे को आपके पैर धोने हैं, कि ये जो धूल है वो मैं अपने बोट पे नहीं लेके जाना चाहता हूँ. तो राम जी कहते हैं कि ठीक है. तो ये लोग तीनों बैठ जाते हैं. तो केवट कहते हैं कि मुझे सिर्फ आपके पैर धोने, मुझे लक्ष्मण जी और सीता मैया के पैरों की धूल चलेगी, आपके पैरों की धूल नहीं चाहिए. ये और थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, बोलते ठीक है धो लो. वो बड़े प्यार से उनके ना पैर धोते हैं, साफ करते हैं, सब कुछ करते हैं, और बड़ी वहाँ पे ऐसे फूलों के जैसे एक रोड बनाते हैं और इंश्योर करते हैं कि राम जी आराम से आके बोट में बैठे. तब राम जी उनको पूछते हैं कि सिर्फ समझने के लिए, जानने के लिए आपने ऐसा क्यों किया, कि आपने सिर्फ मेरे ही पैर धोए और मुझे कहा कि मैं, आप नहीं चाहते कि मेरे कदमों की धूल आपके नाव पे आए, ऐसा क्यों. वो कहता है कि प्रभु मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मैं बहुत ही गरीब हूँ, और मैंने सुना था आप जब ताड़का को मारने जा रहे थे तो बीच में गुरु विश्वामित्र आपको लेके गए थे कुटिया में, और वहां पे उस कुटिया में एक पत्थर था. उस पत्थर पे गुरु ने आपको कहा अपने पैरों की धूल रखिए, और वो जो पत्थर था एक औरत में ट्रांसफॉर्म हुआ, जो अहिल्या माँ थी. तो आपके चरणों की धूल की ऐसे एक पत्थर जो है वो एक औरत में ट्रांसफॉर्म हो गया. मेरी नाव में कई जगहों पे पत्थर है, अगर आपके कदमों की धूल पड़ेगी तो वो सब अगर औरतें बन गई तो मैं उनका उनका ख्याल नहीं रख सकता. प्रभु इसके लिए मैंने आपको रिक्वेस्ट किया, मैं आपके पैरों की धूल छोड़ना, साफ करना चाहता हूँ. नाउ ओवर हियर, ओके. अभी राम जी बड़े खुश होते हैं, बोलते हैं अरे कितना भोला आदमी है. तो सब लोग मुस्कुराते हैं, सब चलते हैं. चलो, अब बोट वो एंड पे पहुंच जाती है. अब राम जी कहते हैं उन्हें कुछ देना चाहते थे, कि ये लोग आप हमें नदी के इस पार लेके आए, तो उन्हें कुछ देना चाहते थे रिटर्न में. तो वो लेने से मना कर देते. तो प्रभु राम कहते हैं अरे मैं दिल से दे रहा हूँ, मैं देना चाहता हूँ, तुमने हमारी सेवा की है, प्लीज आप इसको एक्सेप्ट कीजिए. वो कहते हैं नहीं प्रभु, मैं आपसे नहीं ले सकता हूँ. तो प्रभु राम पूछते क्यों, क्यों नहीं ले सकते आप. बोलते क्योंकि मैं हमारी बिरादरी के लोगों से नहीं लेता हूँ. अब प्रभु राम हैरान, बिरादरी के लोग, मतलब लक्ष्मण भी देख रहे हैं ये हो क्या रहा है. और लक्ष्मण कहते हैं भाई साहब आप कैसी बातें कर रहे हो,
ये राम जी है, ये अयोध्या के राजकुमार है, दशरथ के पुत्र है, सीता जी के पति है, और आप कह रहे हो कि आपकी बिरादरी के ऐसे कैसे? तो वो कहते हैं कि देखिए, मेरा काम क्या है? मेरा काम है कि लोगों को नदी के उस इस पार लेके आना है। तो लक्ष्मण जी हाँ, हाँ ठीक है। बोलते राम जी का काम क्या है? कि इंसान को जीवन के इस पार से जीवन के उस पार लेके जाना है, मोक्ष दिलाना है। तो ये हुए ना हम बिरादरी के। तो राम जी भी मुस्कुराते हैं, लक्ष्मण भी मुस्कुराते हैं, सीता भी मुस्कुराते हैं। तो राम जी कहते हैं कि ठीक है, बट कुछ तो लो। क्या दो, क्या लोगे तुम? बताओ क्या क्या, मैं क्या तुम्हें दूं? तभी बड़ी ब्यूटिफुली वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि जब मेरा समय आएगा, प्रभु जब मेरा समय आएगा, आप मुझे जीवन के उस ओर ले जाना और मुझे मोक्ष की प्राप्ति दिला देना। और राम जी कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही होगा। यू नो नाउ ओवर हियर इफ यू सी, व्हाट अ ब्यूटीफुल way over here when the boatman told Lord that, what do you want? And Lord Rama, and the boatman said, you give me liberation and I'm more than happy. Now, if you look at human beings, we are so, specific to our requirement. A lot of times, a lot of time people pray, कि हमको ये चाहिए, we need this in life, we need that in life. My grandfather told me, and I'm sure, you must be doing it, and your grandparents would have also shared this knowledge with you. My grandfather told me that, Rishi, whenever you're praying to God, never ask for anything. Always thank Him for everything that you have. Because you'll never get everything, but there will never be a phase in your life that you have nothing. You'll have something or the other. Try to observe what you have in life and always thank God for that. And second thing, if you look from it, uh, from learning perspective, मुझे एक learning experience बड़ी अच्छी लगी थी जो मैं share करना चाहूँगा. So I thought that, it's nice, ask as per the capacity, ask as per the giver's capacity and not as per your requirement. Let's see वो कितना दे सकता है, वो तो देख लीजिए. आप क्यों छोटी चीज मांग के आप अपना लॉस करना चाहते हैं? If the person can give you liberation, ask for liberation. Why do you want to ask for any material things? And so goes in your day-to-day life also. A lot of time I see that a lot of people would bargain over pricing, before they get to work and all. But my understanding is, let's start working at least. पैसा तो बाद में भी आ जाएगा, but पहले काम तो शुरू करके देखो. Why do you want that money to get negotiated before you start the work? A lot of time when we do that, there's a possibility I'm not getting the price that I deserve. So, never ever look at your requirement all the time. Always see the giver's capacity also. If the capacity is less, accept less. If the capacity is more, you'll get more. So let's focus on that aspect. Clear? Chaliye. Now let's move ahead. Now, over here, there's a very small but a very, very beautiful conversation takes place when Lord Rama, Ma Sita and Lakshman, they have started to walk inside the jungle, deep inside the jungle. So Lord Rama had told Lakshman that, we are now in exile. So, we should not use all the comforts of the material world. So we walk, barefooted. So they all start walking over there. Now, when they're getting in, they're walking and they're getting in the jungle, Lord Rama के उनके कदमों में उनको बहुत कांटे लगते हैं. उनको बहुत चोट लगती है. वहां पे पत्थर होते हैं, कंकर होते हैं, thorns होते हैं, and his feet starts to bleed. Okay. Now Lord Rama, okay, removes all the stones, all the thorns, कंकर, पत्थर, कांटे सब निकालते हैं, बैठते हैं और वहां पे धरती मैया को. So he tells Mother Nature, Mother Earth that, I would request you to please clear the entire path from where I have walked until where I'm walking. So wherever I keep my feet, I request you to clear the entire path. There should be no stone, no thorn, nothing should be there. Dharti Maya is also wondering, Lord Rama has said I have to do, but still why? What is the reason? What is the purpose? Now look at the beautiful conversation that takes place. Okay. Now over here, Lord Rama says that, my brother Bharat will come in search of me. My brother Bharat will come in search of me. He will also walk exactly the same road. I don't want him to get hurt. I don't want him to feel the pain. I really don't want him to go through what I'm going through. Now Mother Nature is, Prabhu, you have told me I will clear the entire path. That is not an issue. But I don't understand one thing. If you can bear the pain, why can't your brother bear the pain? What is the problem? Why are you being so overprotective about your brother?
Bharat, why are you being so overprotective about him? Let him also, go through the pain. He said the issue is not the pain. He said the issue is not the physical pain. The issue is when he will walk, when he will get hurt, he will think that my brother Ram has walked on this path and what he would have gone through. He will have an emotional pain, and I want to protect him from emotional pain. I don't want him to protect from the physical pain. I know in his pain, also going to think about the pain that I'm getting. He will not think about his pain, but he will think about my pain. Therefore, I want you to please clear that. So when he comes, he feels that, Lord Rama also walked on this path. It's such a smooth path. There's nothing to worry about it. Now, over here, look at his love, compassion, care, empathy for Bharat. You know, I'm sure you all are aware the amazing chemistry bond they had. But over here, the key point is he's in exile, even though it is because of Bharat's mother Kaikai, but still he's in exile, and the reason was Bharat. And still over here, he's thinking about the pain Bharat will have because he's walking on the same path. Lord Rama, if you go through entire Ramayana, you'll realize, whoever gave him a lot of pain, whoever gave him a lot of hurt, and if someone did anything good, even one thing good now, he will always speak about that person's good qualities. He will never ever highlight those negative qualities. There's a lot of there's a very popular phrase that people say, forgive and forget, which I honestly I believe that it's easy to forgive but not easy to forget, and so everyone has the contradicting views on it. But Lord Rama is beautifully explained, accept, move on, and then carry on. But look at the compassion, love, empathy he had for his brothers. Correct. Same qualities if we can have for our family members, for our team members, it's very it's good. But yes, at times कभी होता है कभी नहीं होता है, वो सब part and parcel है. But overall, if we can manage it, empathizing with the other people, we are more than sorted. Clear? चलिए. Now over here, Sita Maiya. So we'll not get into the entire depth of story of Ramayana, because then it will take a lot of time. But just to concise it very quickly. So over here one day Sita Maiya, that there's a golden deer, and she's very she's very happy to see a golden deer. And then she tells Lord Rama that I want this golden deer. Lord Rama says that it's not possible to for a golden deer to exist. She said, no, I saw a golden deer. Even you can see, I need this golden deer. So Lord Rama says, see, Dharti Putri ho, you have come from the Mother Earth, you are the Prakriti ho, even a golden deer does not exist. So why are you insisting? She said, no, there's a possibility it exists. I need the golden deer. So Lord Rama says, there's a possibility some asura, some demon, is in disguise of deer. So let's not chase that deer. So Sita Maiya is like, no, I need the deer, I need the deer, I need the deer. अब इसमें एक चीज देखने वाली है, सीखने वाली कि पति राम जी हो या ऋषि हो या कोई भी हो, पत्नी की सुनना ही पड़ता है. एंड में लॉर्ड रामा आल्सो एग्रीज कि ठीक है, fair enough, now I'll go in search of the golden deer. Now when he goes in search of the golden deer goes right inside in the center of the jungle. वहां पे उनको रियलाइज होता है राम जी को कि ये कोई साधारण डियर नहीं है, ये असुरा है जो यहाँ पे उन्हें अभी शायद अटैक कर सकते हैं. तो वो गोल्डन डियर को मार देते हैं, और मारते मारते वो गोल्डन डियर राम जी की वॉइस में लक्ष्मण जी को पुकारते और सीता जी को पुकारते हैं. वो जो डियर होते हैं मरीच होते हैं, मरीच ताड़का की मदर. तो मरीच had actually accompanied King Ravana so that he can take revenge for his mother's death. But he saw Lord Rama and Lakshman, and he was like, it's not going to happen. But still, because he had given commitment to King Ravan, so he follows the plan. Now over here, Sita Maiya hears, okay, Ramji's for help. She orders, a lot of conversation takes place between Lakshman and Sita Maiya, and Sita Maiya then orders Lakshman to go and help Lord Rama. Lakshman did not want to leave Sita Maiya alone, but still भाभी है, भाभी माँ के समान होती है, माँ ने कहा है तो जाना पड़ेगा, तो लक्ष्मण वहां से चले जाते हैं. अब वहां पे आते हैं रावण, और रावण सारे अपने तंत्र सब ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड अप्लाई करते हैं एंड फाइनली किडनैप सीता एंड गोज अवे फ्रॉम देयर. अब ये जो स्टोरी आती है ना, ये एक टर्निंग पॉइंट आता है, बट ये एक बहुत ब्यूटीफुल मेटाफर है. इट्स अ वेरी वेरी लर्निंग फॉर मी. नाउ दिस एस्पेक्ट,
A lot of time when I ask audience, what did you learn from this tape, the story of this segment? So they say, okay, you should listen to your husband or you should listen to someone, all those things. But the fact is, there's a very clear learning. Who is your golden deer or what is your golden deer? At times we know if we chase this, it's not good for us. At times we know if we run after this, this dream, this thought, this goal, this belief, this habit of mine is not good for me. It could not be for health wise, spiritual wise, finance wise, but still we are attracted. So it is our vice. And we are we are able to overcome some vices, but we are not able to overcome some little vices that we'll have. One or two vices would be there. So what is your golden deer? You need to identify. क्योंकि कभी कभी वो golden deer ही हमें जिंदगी में नीचे लेके जाती है. If we can identify that golden deer, we are more than sorted. But it's very important to know what that golden deer is, who that golden deer is, कि वो आपको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ. Can you control yourself? Can you control your senses? If not, please remember, बहुत बड़ी एक वहां पे युद्ध हो गई थी वो चक्कर में, क्योंकि मैं अपने अपने आशाओं को, अपने अट्रैक्शन को संभाल नहीं पाई थी. And that was the golden deer. So when you go back, please reflect, do some analysis, self-reflection. As I said earlier, self-reflection is the success. Who is your golden deer? What is your golden deer? So you need to please identify that, find it, because there's a very simple model that we have created. So as Rishikesh sir said earlier in my introduction, that we have written a book. I've co-authored a book called Break Your Leadership Chakravyuh with my wife Mehak Mahajan Nanda. So we both have come up with the model that is called AIR model, AIR. So A stands for accept. First, I need to accept there are some vices that I have. There are some weaknesses. I stands for identify. I need to identify those vices. I need to be honest to myself. Because if I'm not honest to myself, how will I grow in life? R stands for rectifying. Then I need to rectify. I need to take measures so that I do not, give into it. I can convert my weakness into my strength, or at least have a self-defense mechanism so that the weakness does not exploit me or the world does not exploit me. So that is how you handle your golden deer. AIR. Accept, identify, rectify. Clear? Good till here? Okay. Chaliye. I hope I'm audible because Dilip sir has said that I'm not. Now, Sita Maiya has got kidnapped. Over there, Lord Rama goes in search of Sita Maiya, obviously, and then he meets Hanumanji. Hanumanji then introduces him to, his king, Sugriv. Now, over there, Sugriv, tells Lord Rama that I would love to help you. I, in fact, understand your, pain. I understand what you're going through. I want to help you. But the problem is, but the problem is, I can't help you. And Lord Rama is wondering, one side he's telling me he wants to help me, and the other hand he's telling me I can't help you. He's like, what are you saying? How is it possible? Because so why you can't help me? He said that actually there's this kingdom Kishkinda, and my brother Bali, we both were ruling the kingdom, but one day there was some miscommunication that took place and misunderstanding that took place between Bali and me. So he has taken away my wife, he's taken away my kingdom, he's taken away all my army, and he has abandoned me. So I cannot enter Kishkinda, so I can't help you, but I want to help you. So if then Sugriv Maharaj says that okay, let's do a deal. If you can help me to kill my brother, and you can help me to win my kingdom back, I give you a commitment that yes, we will ensure that my entire army, we all are there with you, to find your wife. Ramji agrees. But what the beauty is, I'm sure but a lot of people are not aware of this, Bali Maharaj, Bali, the Sugriv Bali had actually defeated Ravana in his heydays. जब रावण और बाली के बीच में एक बार झगड़ा होता है तो बाली रावण को अपने आर्मपिट के अंदर रखते हैं महीनों तक, और रावण उनसे जब माफी मांगते हैं तब बाली उनको छोड़ते हैं. बाली वाज अ वेरी वेरी स्ट्रांग मंकी, और बाद में रावण और बाली अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं. एंड देन दे सो जैसे आज की डेट में कैसे एक ट्रीटी साइन होती है कि हम आप पे अटैक नहीं करें, आप हम पे अटैक नहीं करें, तो वैसे एक अनसेट ट्रीटी थी बिटवीन बाली एंड रावण. सो that was so he explains the
about his situation. Sugriv Maharaj explains about his situation, that why he can't help him, and then Rama says, okay, enough, I will help you, win back your kingdom, get your wife and your army, and then we can go ahead in search of my wife. But now the issue is they're identical twins. So next day, Lord Rama says, okay, let's do one thing. You call him for a fight. I will stand behind it, try to, kill him from there. मान जाते हैं. अब वहां पे राम जी हैरान अगले दिन देख के कि अब तक सुना है ना, तो अब तो देखा नहीं है बाली को. बाली और सुग्रीव सेम दिख रहे, एक मतलब 1 मिलीमीटर का भी डिफरेंस नहीं. अब राम जी को पता ही नहीं मैं किसको मारूं, अगर जिसको मारूं वो बाली है या सुग्रीव है. तो राम जी बड़े हैरान होते हैं और वो बाण चलाते ही नहीं है, और सुग्रीव को बड़ी बुरी तरह मार पिटती है और सुग्रीव भाग के आ जाते हैं वहां से. अब ये होता क्यों, क्योंकि बाली के पास एक आशीर्वाद होता है कि जो भी उनसे युद्ध करेगा, कोई भी ओपोनेंट उनसे युद्ध करेगा, तो उनका ओपोनेंट का जो स्ट्रेंथ है 50% बाली को मिल जाएगा. करेक्ट, तो वो और स्ट्रांग हो जाएगा, ओपोनेंट वीक हो जाएगा. तो सुग्रीव को बड़ी बुरी तरह मार पड़ती है, सुग्रीव वहां से भाग के आ जाते हैं. फिर सुग्रीव अगले दिन कहते हैं, बाद में कहते हैं राम जी को, प्रभु आपने तो कहा था आप मारोगे, बट मैं मार खा के आ गया, ये क्या हुआ. तो राम जी कहते देखो दुविधा में पड़ गया था, क्षमा करना, मैं पहचान ही नहीं पाया बाली कौन है सुग्रीव कौन है, तो मैं क्या करता, मैं तुम्हें मारता उसे मारता, मुझे पता ही नहीं था. तो सुग्रीव भी मानता ये बात तो है, ये तो आप करेक्ट कह रहे हो प्रभु. तो फिर उन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और एक आइडिया निकलता है कि सुग्रीव को माला पहनाई जाएगी. ओके, और सुग्रीव फिर जाएंगे युद्ध करने के लिए. तो जब सुग्रीव थोड़े ठीक ठाक होते हैं, फिर जाते वापस बाली के पास और कहते हैं कि आओ युद्ध करते हैं, और माला वाला पहन के. अब बाली भी हैरान कि कोई युद्ध करने आया है, सच धज के क्यों आया, माला वाला पहन के आया. तो बाली और सुग्रीव युद्ध आरंभ करते हैं. अब प्रभु राम पेड़ के पीछे खड़े होते हैं और वहां से एरो चलाते हैं और बाली का वध करते हैं. यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होती है विच आई वुड लाइक टू शेयर. बाली महाराज जब गिरते हैं नीचे, और देखते हैं कि राम जी पेड़ के पीछे से चलकर आ रहे हैं, तो बड़े हैरान होते हैं, वो बहुत हैरान होते हैं. और वो राम जी को कहते हैं कि आप तो राम हो, आप तो अयोध्या के क्षत्रिय, आप बेटे राम हो, और आपने मुझे पीठ पे वार किए के पीछे छुपकर वार किया. आपने धर्म नहीं निभाया, आपको तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, आप तो धर्म की स्थापना कर रहे हो इस धरती पे, और आपने अधर्म कैसे कर दिया. नाउ लुक एट द आंसर ऑफ लॉर्ड रामा, सच ब्यूटीफुल आंसर. राम जी कहते हैं तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा जवाब है, तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा जवाब है. तो बाली और कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरे क्वेश्चन में एक आंसर कैसे हो गया. तो ही सेज यू टोल्ड मी दैट आई एम अ क्षत्रिय एंड यू आर एन एनिमल. ओके, यू आर फॉरगेटिंग कि एक क्षत्रिय का धर्म है, धर्म में है कि वो किसी जानवर को छिप के मार सकता है. मतलब इतिहास गवाह है, सब कर सकते हैं. मैंने अपना धर्म का पालन किया, तुम अपने आप को बंदर नहीं समझ रहे हो, जानवर नहीं समझ रहे हो, गलती तुम्हारी है, मेरे धर्म की नहीं है, मेरे धर्म की समझ की नहीं है. तो बाली महाराज हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं पर फिर भी आपने मुझे पीठ के पीछे मारा और छुप के मारा. तब राम जी कहते हैं, ये शायद बहुत लोगों को ध्यान में नहीं होगा, तब राम जी उन्हें कहते हैं आप आराम से आंख बंद करके आप सो जाइए. पसंद देता हूं कि अगले जन्म में आपको ये जो भी हुआ, जो मैंने आपको पीठ के पीछे से मारा, मेरा जो कर्म है ये मुझ पर वापस आएगा, आपको अपना कर्म मिलेगा, और आप सो जाइए. अब बाली महाराज बड़े खुश होते हैं कि राम जी ने कह दिया, हाथ जोड़ते हैं, प्रभु को नमन करते हैं और सो जाते हैं, और उनकी मृत्यु हो जाती है. अब जब राम जी ने ये किया, तो विल जस्ट गो बिट ऑफ ट्रैक आउट ऑफ रामायण टू अंडरस्टैंड दिस. व्हाट हैपेंस इज, अब the people who are aware of Mahabharata, so they'll be able to link it. For others, I'll just very quickly I'll just share what happens is, महाभारत में होता क्या, जब युद्ध खत्म हो जाता है, तो आफ्टर 36 years of the war, एक दिन प्रभु कृष्ण और बलराम बैठे होते हैं, और वहां और उस वक्त बलराम कहते हैं कृष्ण को कि लगता है आज सुनामी आने वाली है, कि आज सब कुछ भस्म होने वाला है, लगता है कि आज माँ गांधारी ने जो तुम्हें श्राप दिया था कि जिस तरह के हस्तिनापुर उनके सामने बर्बाद हुआ है, आज द्वारका भी डूब जाएगी, लगता है आज ये होने वाला है. वैसे ही बलराम भगवान बैठते योग माया में, अपने शरीर को छोड़ के बैकुंठ जाते हैं, और कृष्ण भगवान बैठे होते हैं, आंख बंद करते हैं, पेड़ के पीछे बैठते हैं और योग पोजीशन में बैठते हैं. वैसे ही उनको एक एरो आके उनके टो पे लगता है, और
वो हंटर आके देखता है, उनको लगता है कि मैंने एक हिरन को मार दिया है, एंड द हंटर इज वेरी हैप्पी दैट फाइनली आई हैव caught hold of a deer, you know. And then he sees that, oh my God, it's not a deer, but it's my Almighty, it's my Lord, it's my God, it's Krishna who's lying there. He seeks forgiveness from Krishna and says, Krishna, please forgive me for what I've done. I was not aware of it, Prabhu. I thought it's a deer. Krishna says, you don't need to worry about it, Zara, Rishi, because there is this is some what karma, it is my karma. Sorry? Rishi, there is some lag. So can you just repeat for last 2 minutes Okay, again, if you don't sure. mind, for the benefit of the audience? Do that. There is some lag. No. Definitely, I do. No problem. Now is it better? Now is it better? Yes, yes, yes. Is it better now? Yeah, it's better. Okay, Somewhat fair better. enough. So what happens is, so over there, thank you. So when he sees that Lord Krishna is lying there, he seeks forgiveness and he says, the hunter says that I thought that, it's a deer. I was not aware, my Almighty, my God, Krishna is lying over here. Please forgive me. Then Krishna said that, you don't need to seek forgiveness, because this is what was, this was supposed to happen. I was supposed to die from your hand, and you were only supposed to injure me, and I was supposed to leave this earth because of you. And that hunter is like, sir, what have I done? What sin I have done to do this? And why are you saying that I had to die from your hand? He says, Zara, you're talking about this life, but I'm talking about the previous life. In the previous life, I was Rama, you were Bali, and I, shot an arrow towards you, when I was behind the tree. The karma has to set off. I had given you a commitment that you sleep peacefully, you will get the karma, the karma will strike. And now I was behind the tree, और आपका arrow मुझे आके लगा. So whatever commitment Lord Rama has given to anyone, he has ensured that he is fulfilled in his life as Lord Rama, or in the next life as Lord Krishna. But commitment is always given. Now coming back to Bali and Sugriv, अब यहाँ पे बाली और सुग्रीव में एक चीज समझते हैं. तो आई टोल्ड यू अर्लियर दैट बाली ने तो रावण को भी हराया था. तो अगर आप देखेंगे, टेक्निकली बाली वाज अ बेटर बेट, कि बाली ने तो रावण को भी हराया है. मैं बाली को बोलूंगा आप मेरी मदद करो, वरना मैं आप पे आक्रमण कर दूंगा, मैं अयोध्या का प्रिंस हूं. बट स्टिल लॉर्ड रामा हेल्प सुग्रीव. व्हाई? There's a very beautiful line that I would like to share with you. Support who is right, not right for you, but support who is right. Support who is right, but not necessarily they are right for you. Because over here, Lord Rama understood that Sugriv, wife is also not there with him. और मुझसे अच्छा कौन समझ सकता है कि जब बीवी दूर चली जाती है, कोई लेके चला जाता है तो कैसा होता है. So I will support Sugriv because what Bali has done is ethically wrong, which I will not accept. And that is the reason he supports Sugriv over Bali over there. चलिए. So in our life also, a lot of times this dilemma will come. Whom should we support? So there's another, I would like to share Chanakya Niti. Chanakya Niti में कहा गया, especially when you're in an organization or you're taking decision for your business or for your corporate, wherever you're working. Chanakya Niti said that whenever you're in a dilemma, what decision to take, please take a decision that is good for the organization. Whatever is good for the organization is good for you. Whatever is good for the organization is good for you. Don't think of yourself as an individual. Think of yourself as an organization, and you're more than important. Correct? Chaliye. Now, over here, finally, Sugriv ki sab puri sena दुनिया भर में जाते हैं, and they are all searching Ma Sita, and finally they come to know when they reach the end of Bharat, the India जहाँ पे end होता है, and then over there Jatayu के brother Sampati. So Jatayu was the one who was trying to protect Ma Sita from Ravan when Ravan was trying to kidnap Ma Sita. उनके brother Sampati उनको वानर को वहाँ पे कहते हैं कि मैंने देखा था रावण किसी औरत को लेके गया है, बट मैं नहीं जानता तो माँ सीता है, वरना मैं भी कोशिश करता. अब वहां पे सब देखते लंका. अब लंका जाएंगे कैसे? बिकॉज ना एरोप्लेन है, ना बोट है, ना शिप है. हाउ डू वी गो ऑन दैट साइड? इट्स अ ह्यूज महासागर है. And then all are discussing how do we go to Lanka, कैसे जाएंगे उस पार, क्या करना है, कौन जाएगा. And everyone starts, so typically in a motivation session क्या होता है ना, कि जब वो talk खत्म होता है, then the manager will come and ask, okay, give me a commitment, who will do how much. So some people will start committing, I will do 1 crore, I'll do 2 crore, I'll do 3 crores, I'll do 4 crores, and everyone starts building up the energy, and everyone is giving a commitment.
एंड द मैनेजर नहीं 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 1 करोड़ से कुछ नहीं होगा, अरे 2 करोड़ से क्या आएगा, अरे 3 करोड़ से कुछ नहीं होगा, ब्रेक इवन भी नहीं होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रहा है, क्या बात कर रहे हैं, नहीं नहीं और चाहिए और चाहिए, बिकॉज एवरीवन इज गिविंग अ कमिटमेंट, आई कैन जंप 10 kilometers, 15 kilometers, all those things. And over there, they all are listing what's happening, but it's not good enough. Then Jamvan calls Hanuman and he says that, Hanuman, aap jaoge. And Hanuman ji is sitting like this. He's looking here and there. He had not given any commitment only. So there are typically some employees in a meeting who are sitting at them blank and they're wondering what is happening. Everyone is giving left, right, and center commitment. What commitment should I give? And they're looking in there. And then the manager pulls them up and says that you will do it. So Hanuman is typically that employee at that moment. He's like, how do I do? I don't know. I don't think so. I can jump that much. He said, no, you can do. What is wrong with you? Only you can do. And he's like, how do I do? You have to tell me what do I do. If you tell me I can do, I'll do, but I don't know how to do. He's like, see, when you were a kid, you were a very, notorious kid. तुम बहुत मस्ती करते थे. तुम इतनी मस्ती करते थे कि एक बार तुम्हें जब भूख लगी और तुम खिड़की पे खड़े थे, तुम्हें बाहर एक गोल्डन फ्रूट दिखा और तुमने अपनी खिड़की से छलांग लगा दी उस गोल्डन फ्रूट को खाने के लिए. और जैसे आपने उस खिड़की से छलांग लगाई गोल्डन फ्रूट को खाने के लिए, तुम्हें रियलाइज हो कि दूर तो ये फ्रूट है तुमसे दूर जाते जा रहा है, और तुम अपनी छलांग बढ़ाते गए. बचपने में ये समझ में नहीं आया कि वो गोल्डन फ्रूट नहीं था, वो फल नहीं था, वो सूर्य था. और तुमने अपना मुंह इतना खोला, सूर्य को अपने मुंह में ले लिया और वहां पे पूरा अंधेरा छा गया. फिर इंद्र देवता आए, इंद्र देवता ने थंडर बोल्ट का इस्तेमाल किया, सूर्य आए, थोड़ा वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सब कुछ हुआ, और बाद में फिर सूर्य को तुमने मुंह से निकाला. बट तुम इतनी मस्ती करते थे कि सब देवी देवता थोड़े तुमसे परेशान हो गए थे. वहां पे जितने भी साधु संत थे, गुरु थे, तुमसे थोड़े परेशान हो गए थे. नटखट थे तुम, बहुत नटखट थे. तो उस वक्त वहां पे जितने गुरु थे उन्होंने तुम्हें एक श्राप दिया कि तुम ये सब अपनी शक्तियां भूल जाओगे जब तक तुम्हें कोई याद नहीं दिलाएगा. जब तक तुम्हें कोई याद नहीं दिलाएगा तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे. अब वहां पे जामवन हनुमान जी की तारीफ करना चालू करते हैं कि तुम कर सकते हो, तुम अकेले ही जो कर सकते हो, प्रभु राम का नाम लो, तुम में सब शक्ति है, तुम सर्वगुणपन. और जैसे जैसे वो हनुमान जी का नाम तारीफ करते हैं, हनुमान जी और बड़े 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 हो जाते हैं, पहाड़ से बड़े हो जाते हैं. और जैसे एक बहुत बड़े साइज में आते हैं, कहते हैं जय श्री राम और छलांग लगा देते हैं. करेक्ट. अब ये जो है ना, ये एस्पेक्ट जो है, वी आर गोइंग टू कवर इन 2 parts. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट विल कम आफ्टर 5-10 minutes. फर्स्ट पार्ट इज दिस इज कॉल्ड इन अ कॉर्पोरेट टर्म एक्सटर्नल मोटिवेशन. कि आपको याद दिलाया जाता है आपकी हिस्ट्री, आपको याद दिलाया जाता है आपका स्किल सेट, आपको याद दिलाया जाता है कि आपने ये कर सकते हो, कर चुके हो, क्यों नहीं वापस कर रहे हो. आपको लोग आसपास मोटिवेट करते हैं, आपको एकदम खुश कर देते हैं, आपकी एनर्जी चाहिए जाती है, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. एंड देन बिकॉज समवन हैज रिमाइंडेड यू ऑफ योर ओन स्किल सेट, of your own history which you had forgotten and which you could not recollect, therefore you were sitting over there and then suddenly you feel, अरे ये तो मैं कर सकता हूँ, मुझ में शक्ति है, मुझ में चाहत है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ. और आप खड़े होके उस पे कमिट करते हैं, and obviously you fulfill the commitment also. So this aspect I usually cover motivational talk. अब ये एक और रीजन ये होता है क्योंकि मुझे ना कई बार मोटिवेशनल सेशंस के लिए जब बुलाया जाता है तो मुझे पूछते हैं लोग, जो एचआर वाले होते हैं स्पेसिफिकली, कि ऋषि मोटिवेशन सेशन का क्या पर्पस है, 2-3 घंटे के टॉक में क्या होता है. मैंने देखिए सर, मैं जामवन बन जाऊंगा, आपको आपका हनुमान दिला दूंगा, मैं हनुमान जी को याद दिला दूंगा, आपके एम्प्लॉयज को याद दिला दूंगा, उनका स्किल सेट कितना है, वो क्या कर सकते हैं, उनमें कितनी क्षमता है, उनमें एनर्जी ले आऊंगा, और बाद में छलांगा. सर मैं इतना आपको करके दे सकता हूँ क्योंकि हनुमान जी को भी कोई तो चाहिए था याद दिलाने के लिए कि वो कर सकते हैं. सर मैं वो याद दिला दूंगा. So this is the purpose of external motivation. At times you require people coming, giving you that pep talk, giving you the confidence that you can do it. Clear? राम हनुमान जी वहां पे पहुंच जाते हैं. अब हनुमान जी वहां पे लंका जाते हैं. आई एम श्योर फिर आपको पता होगा, लंका में जब जाते हैं वहां पे रावण उनको पकड़ लेते हैं. जब वो सीता मैया को, सॉरी हनुमान जी पहले सीता मैया को रिंग देते हैं और याद दिलाते हैं कि मैं सॉरी बताते हैं कि मेरे को राम जी ने ही भेजा है, और राम जी आके यहाँ पे अभी उनको बचा लेंगे. फिर हनुमान जी सोचते हैं कि मैं वापस राम जी के पास जाने से पहले एक बार लंका को ठीक से देख लेता हूँ, कौन कौन किधर छुपा है, कैसे बैठे, क्या सिक्योरिटी, सब कुछ है. और वहां पे वो देखते, सब कुछ देखते होते, ठीक है समझ तो गया हूँ. वहां पे सडनली वो एक आवाज आती है,
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वो बड़े हैरान होते हैं कि लंका में कोई राम का नाम क्यों ले रहे हैं, प्रभु नाम का। जाते हैं, देखते हैं वहां पे विभीषण होते हैं। पूछते हैं आप कौन? तो कहते हैं कि मैं रावण का भाई विभीषण। बोलते हैं आप कौन? कहते हैं कि मैं राम भक्त हनुमान। तो फिर उनका इंट्रोडक्शन होता है और वो कहते हैं कि मैंने भैया को कहा था, रावण को कहा था। विभीषण जी कहते हैं कि सीता मैया को वापस भेज दो, जो किया गलत किया, बट वो भेज ही नहीं रहे। तो मुझे भी लगता है कि युद्ध हो, प्रभु राम को कहना कि यहाँ पे भी उनके भक्त जन है। तो हनुमान जी उनसे बात करके चलते वहां से। फिर हनुमान जी बोलते यहाँ पे मैं समझ तो गया हूँ कि लंका कैसी है, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, कौन कौन किधर खड़ा है, पूरा वो समझ जाते। बोलते बट मुझे फिर भी एक बार इनका स्ट्रेंथ आजमाना पड़ेगा, एक बार तो देखना पड़ेगा ना कितने स्ट्रांग हैं। तो क्या करते हैं कि हनुमान जी वहां पे इतना उथल पुथल करते हैं और अपने आप को सरेंडर करवा देते हैं। वॉलंटरी वो अपने आप को सरेंडर कराते हैं और रावण के जो सैनिक होते हैं वो उनको लेके जाते हैं रावण के पास। रावण उस वक्त हनुमान जी को दंड देना चाहते थे, मृत्यु दंड देना चाहते थे। बट उस वक्त विभीषण कहते कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, है दुश्मनों के वास से आया है, आप ये गलत है। तो रावण कहे कि ठीक है, अभी तुम कह रहे हो कि नीति ये कहती है तो हम इसे नहीं मारेंगे, बट फिर भी सजा तो मैं इसे जरूर देना चाहूंगा। और सजा ये है कि मैं इसकी पूंछ को तुम लोग आग लगा दो, क्योंकि बंदर का जो प्राइड होता है, जो ऑनर होता है, उसके पूंछ में होता है। अब हनुमान जी की पूंछ में तो आग लगा देते। हनुमान जी पूरी लंका को आग लगा के, या जहाँ पे रावण रहते थे स्पेसिफिकली वो सेक्शन को आग लगाते हैं। विभीषण के कमरे को, विभीषण के जो जहाँ पे रहते हैं वहां पे आग नहीं लगाते, बाकी सब जगह आग निकाल के हनुमान जी चले जाते हैं। अब हनुमान जी राम जी को बताते हैं कि देखो अब मुझे सीता मैया मिल गई। अब ये बैकड्रॉप में होता क्या है कि विभीषण और रावण का इंटरेक्शन होता है, जहाँ पे विभीषण रावण को कहते हैं कि सीता को मैया को वापस भेज दो, और रावण कहते हैं कि यार तू भाई है कि क्या, उन्हें मुझे समझ में नहीं आता है, तू जा यहाँ से। अब विभीषण आते हैं राम जी के पास और राम जी, मैं आपके साथ आपकी मदद करना चाहता हूँ। ओके, और मैं मदद करना चाहता हूँ कि आप रावण को हराइए, रावण को मारिए, तो दैट सीता मैया आपके पास आ जाए। अब वहां पे जितने भी राम जी की जो कोर टीम होती है, वो लोग सब डिस्कशन के लिए बैठते हैं, सब एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। तो सब लोग कहते हैं भैया इस पे भरोसा नहीं कर, रावण का भाई है, ये भी कोई रावण का अच्छा कर सकता है। वहां जितने भी लोग होते हैं, सुग्रीव हो, जामवंत हो, Rishi, लक्ष्मण, सब कहते excuse हैं me. यस सर। Rishi, can you just come back for last 1 minute again? There was some श्योर lag. श्योर 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 या सो ओवर देयर व्हाट हैपेंस इज कि व्हेन विभीषण कम्स एंड ऑफर्स कि मुझे आपकी मदद करनी है, सो नाउ इट बिकम्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। अभी कैसे एक्सेप्ट करें। तो जितने भी लोग होते हैं राम जी के वहां पे जो कोर टीम होते हैं, दे ऑल आर अगेंस्ट दैट आइडिया कि आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो राम जी सबकी बात सुनते हैं। ओके, राम जी में एक बहुत ब्यूटीफुल क्वालिटी, सबकी बात सुनते थे, आराम से सुनते थे, बहुत पेशेंस था। सबकी बात सुनी और उन्होंने नोट किया हनुमान जी कुछ बोल ही नहीं रहे। तो हनुमान जी को पूछते कि क्या करना चाहिए। तो हनुमान जी, अब इन दोनों का इंटरेक्शन अब देखिए। राम जी कहते हैं कि हनुमान, आपने नहीं बताया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो नाउ लेट्स लुक इट फ्रॉम अ मैनेजर एंड अ सबऑर्डिनेट, जस्ट लुक एट दिस कन्वर्सेशन फ्रॉम दैट एस्पेक्ट। प्रभु राम कह रहे हनुमान जी को कि हनुमान, आपने नहीं मुझे बताया मुझे क्या करना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपको क्या करना है वो तो आप ही जानो, आपको क्या करना है वो आप ही जानो। मैं सिर्फ इतना जान, जब मैं लंका में गया था, ये जय श्री राम कह रहे थे, जब मैं लंका में रावण ने मुझे पकड़ा था, इन्होंने कहा था कि ये नीति के खिलाफ है, इन्हें छोड़ दो। मुझे लगता है आप इन पे भरोसा कर सकते हैं, बट बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप ठीक समझो। So over here, the manager is seeking feedback from the subordinate, and the subordinate is saying, I have full confidence in you. You decide what you want to do, but I'm just giving you my input, and this is my input. And then Ramji, discuss further with everyone, and then finally he says, okay, Vibhishan, आप हमारी टीम में आ जाओ। ऑनेस्टली मैं जब ये स्टोरी जब बताता हूँ, या स्टोरी के पहले लोगों से पूछता हूँ कि राम जी ने किस पे भरोसा किया, तो सब लोग कहते हैं विभीषण पे भरोसा किया। क्यों किया? क्योंकि वो धर्म के साथ था, सीता मैया के सपोर्ट कर रहा था, रावण के खिलाफ था। मेरा बट पॉसिबल ही नहीं है ना, आपका कॉम्पिटिटर आपके पास आके कहता है उनका सीईओ कि मेरे को ज्वाइन करना है, आपको क्या गारंटी वो इन्फॉर्मेशन लेना है कि देना है। यहाँ पे राम जी ने एक्चुअली जो भरोसा किया था, वो भरोसा किया था अपने टीम मेंबर पे, उन्होंने भरोसा किया था हनुमान पे। एज ए लीडर वी ऑल्सो हैव टू गिव देम द प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस
We have to give them the platform and the confidence that yes, whatever you are saying, we are listening. जब सब बात कर रहे थे, राम जी ने उनको सुना, जो बात नहीं कर रहा था राम जी ने उनको भी पूछा. अगर आप मॉडर्न टर्म में देखते हो, जब एक टीम मीटिंग होती है, देयर आर एक्सट्रोवर्ट्स एंड देयर आर इंट्रोवर्ट्स. एक्सट्रोवर्ट्स जो है वो अपने आइडियाज सुझाव आपको फटाफट देते जाएंगे, बट इंट्रोवर्ट्स को पूछना पड़ता है, उनको एक प्लेटफॉर्म देना पड़ता है, उनको स्पेस देना पड़ता है, वन टू वन कंफर्ट देना पड़ता है, फिर वो अपनी बात करते हैं. राम जी हर एक को ध्यान दे रहे थे, कौन कह रहा है कौन नहीं दे रहा है, लॉजिक भी लगा रहे थे. और बाकियों ने भी, कभी हनुमान ने कहा, हनुमान अकेला ही वहां पे गया तो उसको ही ज्यादा बेटर पता है. राम जी भी लंका नहीं गए, तो उनको पता है कि यहाँ का जो भी एक्सपीरियंस है लंका का, वो हनुमान को मुझसे ज्यादा है. सो लेट मी टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क ऑन द सजेशन ऑफ माय टीम मेंबर, एंड दैट इज व्हाट ही डज ओवर देयर. अब विभीषण भी आ जाते हैं. अब यहाँ पे बोलते हैं कि लंका जाएंगे कैसे, तो विभीषण कहते हैं कि आप क्यों नहीं वरुण देवता को कहते कि आके बताए कि वहां पे कैसे जाना है, द गॉड ऑफ सी. अब राम जी कहते हैं कि ठीक है, हम वरुण देवता को पूछते हैं, हम उनसे आज्ञा करें, हम उनकी प्रेयर करेंगे, फिर हम उनसे परमिशन मांगेंगे, हम उनसे मार्गदर्शन मांगेंगे कि उस पार कैसे है. लक्ष्मण उस वक्त कहते हैं, भैया आपको हर एक से बार बार क्यों रिक्वेस्ट करना है, उसको ऑर्डर करो आने के लिए, उनको बोलो आए और बताए, आप क्यों उनके उनके पूजा वूजा करने बैठे हो. तो प्रभु राम तब ना बड़ा अच्छा कहते हैं, वो कहते हैं कि लक्ष्मण, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास अगर शस्त्र है तो शस्त्र का इस्तेमाल हर बार करना चाहिए. जो चीजें अगर प्रेम सद्भावना से हो सकती है तो प्रेम से करो, झगड़ा क्यों करना है तुमने. मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा. अब प्रभु राम कई दिनों तक पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, और वरुण भगवान आते नहीं है. अगर आप रामायण ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आपने देखी भी होगी, आपने जब सुनी होगी, तो आपने एक चीज आपको स्ट्राइक होएगा कि प्रभु राम ना अपना टेम्पर बड़े अच्छी तरह कंट्रोल करते थे, उनको गुस्सा बहुत कम आता था. इनफैक्ट बहुत कम ओकेजन्स है पूरे रामायण में जहां पे प्रभु राम ने अपने सेंसेस को ओपन किया है, जहां पे उन्होंने रोए है या उनको गुस्सा आता है. ये फर्स्ट इंस्टेंस आता है पूरे उसमें जहां पे उनको गुस्सा आता है, और वो कहते हैं कि मैं तुमसे कब से रास्ता मांग रहा हूं, मार्ग दर्शन चाहता हूं कि मैं उस पार कैसे जाऊं. मैं तुम्हारे यज्ञ कर रहा हूं, तुम्हारे लिए पूजा कर रहा हूं, तुम्हें कब से बुला रहा हूं, और तुम आ नहीं रहे हो. तुम इतने घमंडी हो गए कि तुम मुझे आके अपने दर्शन नहीं दोगे. अब मैं ऐसा बाण चलाऊंगा कि पूरी की पूरी नदी सुखा दूंगा, और मेरी जितनी सेना है अब उस पार चलकर चली जाएगी. उस वक्त वरुण भगवान को बड़ा डर लगता है, और बाहर आके कहते कि प्रभु राम, मुझे अहंकार नहीं है, मुझे शर्मिंदगी है. और शर्मिंदगी इस बात की थी कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं आपको क्या रास्ता बताऊं कि आप उस पार जा पाओ, पर मुझे अभी ही रास्ता मिला, और उसी वक्त आपने भी बुला लिया. प्रभु, आपकी जो सेना है उसमें 2 वानर है, उनका नाम है नल और नील के पुत्र है, आप प्लीज उनको बोलिए, उनसे एक श्राप समझो, आशीर्वाद समझो कि वो जैसे उनको ब्रिज बनाना आता है, जो भी वो फेंकेंगे पानी में वो फ्लोट होता है, सर्टेन एक्सटेंट तक डूबता नहीं है. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप हर पत्थर पे अपना नाम लिखिए, मैं उस पत्थर को डूबने नहीं दूंगा. अब यहाँ पे जितने भी वानर होते हैं सब चालू हो जाते, बड़े बड़े पत्थर उठाते हैं. हनुमान जी हर पत्थर पे लिखते हैं बड़े प्रेम से, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. और ये सब बंदर बड़े बड़े पत्थर उठाते और फेंकते, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. और पूरी वॉर क्राई ऐसे लगती है और दूर दूर तक आवाज पहुंचती है, जय श्री राम, जय श्री राम. उस सब के बीच वहां पे कुछ बंदर देखते हैं कि छोटी सी वहां पे स्क्विरल्स थी, गिलहरी थी. अब ये बंदर देख के हैरान, ये स्क्विरल्स कर क्या रहे हैं, तो ऑब्जर्व करते हैं और देखते कि स्क्विरल्स है वो छोटे छोटे कंकर अपने मुंह में लेते हैं, भागते पत्थरों के ऊपर और उसको स्पिट करते हैं. अब ये बंदर बड़े हंसते लगते हैं और पूछते हैं उनको, ओए तुम कर क्या रहे हो. तो जैसे हम प्रभु राम के भक्त हैं, हम प्रभु राम की मदद करना चाहते हैं, हम प्रभु राम के लिए ये सेतु बनाना चाहते हैं, जैसे आप बना रहे हो, हम आपकी मदद करना चाहते हैं. तो फिर कुछ मंकी जोर जोर से हंसते और कहते, बंदर कहते, अरे बाबा, हमको ये पुल बनाना है, ये सेतु बनाना है, हमको लंका इसी जन्म में पहुंचना है. तुम कंकर फेंकते रहोगे तो पता नहीं कब पहुंचेंगे. तुम ये बड़े बड़े पत्थर क्यों नहीं उठाते हो. और कुछ जो बंदर होते हैं मस्ती में ऐसे बड़े पत्थर गिलेरी के ऊपर फेंकते, गिलेरी बच के भाग के ऐसे निकलती है. कई सारे बंदर उन स्क्विरल्स का मजाक उड़ाते हैं. कई सारे बंदर कहते हैं, चलो चलो जल्दी करो, ये कंकर लो, ये लो, वो लो. उनको फिजिकली छेड़ते हैं, इरिटेट करते हैं, सब कुछ करते हैं. बट वो स्क्विरल्स चुपचाप अपने काम पे ध्यान देते हैं. अब ये दिखते हैं प्रभु राम,
और वहां पे उनमें से एक को खिलाते हैं, हाथों में लेते हैं और कहते हैं थैंक यू, धन्यवाद। अब ये सब बंदर हैरान, ये सब बंदर हैरान के इन्होंने ऐसा क्या कार्य किया, प्रभु राम ने इनको धन्यवाद कहा। तो प्रभु के पास जाते और कहते कि हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं प्रभु, हम ये नहीं चाहते कि आप हमें धन्यवाद कीजिए, हम आपके भक्त हैं, हमारा फर्ज है, हमारा कर्म है, हमारा धर्म है आपकी सेवा करना, बट हम आपको एक बात पूछना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा, हमारी गलती किधर हो गई, हमारी गलती किधर हो गई। तो उस वक्त प्रभु राम कहते हैं कि उस वक्त प्रभु राम कहते हैं कि अगर तुम देखोगे, अगर तुम देखोगे, तुम ये बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हो क्योंकि तुम ये बड़े पत्थर उठा सकते हो, यू आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग टू पिक अप दीज बिग स्टोन्स, इसके लिए तुम ये पत्थर उठा रहे हो। बट अगर तुम देखोगे तो छोटी सी गिलेरी है, वो अपने मुंह में फिर भी कंकर ले रही है, उसके लिए भी तो बड़ा पत्थर है, और तुम ये बड़े बड़े पत्थर उठा के उसको फेंकते जा रहे हो। और अगर तुमने ध्यान दिया होगा, ये जो कंकर है वो चार पत्थरों के बीच पे जाता है और उस पुल को और मजबूत कर रहा है। मैं ये नहीं देखता कौन कितना बड़ा पत्थर उठा रहा है, मैं ये देखता हूं कोई अपने दिल से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। Are they giving, their 100%? Are they working as per their capacity? Are they, surrendering themselves to work voluntary? That is what I see. They all understand their mistake and they go there, go back. And then the monkeys and the squirrels, they all work together and build the setu. अब इसमें अगर हम देखेंगे, चार पांच चीजें आती है जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए आपसे, क्योंकि सेतु के ऊपर ही मुझे लगता है कि कम से कम एक आध घंटे का लेक्चर हो सकता है, बट स्टिल टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट इज ट्रस्ट योर टीम मेंबर्स जजमेंट। ओके, आपको एज ए लीडर कभी ना कभी अपने टीम मेंबर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, कैलकुलेटेड ट्रस्ट, छोटा ट्रस्ट, आप कुछ तो कीजिए, बट करना तो पड़ेगा, क्योंकि आप ओमनी प्रेजेंट नहीं है, आप सब कुछ नहीं कर सकते। जैसे राम जी ने हनुमान जी के ऊपर भरोसा किया, तब जाके वो सेतु बना, तब जाके सीता मैया मिली, तब जाके वो बचते भी, आगे जाके हम उनके ऊपर बात करेंगे। एक बहुत अच्छा भजन है, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, सीता का बचना मुश्किल था, सीता क्या था, सीता का नहीं, लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था, लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना। You look at the beautiful leader and the subordinate, chemistry over here. A leader has vision, leader knows exactly what to do, how to do and all, but it is the subordinate who has to execute the plan. It is the subordinate who has to execute the plan, correct? So it's a beautiful learning over here. And how do you build such team? It is by trusting them, by giving them a platform to express their ideas, to express their views. Second is anger is a powerful tool, use it carefully. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर जितने माता पिता है वो मेरी बात से सहमत होंगे। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे बच्चे मस्ती करते हैं, अगर मैं अपने बच्चे को मैं भी उनका बहुत मस्ती करता हूँ, मना करता हूँ, बट कभी कभी जब मुझे लगता है कि थोड़ा ये लाइन क्रॉस कर रहे हैं, थोड़ी बदतमीजी कर रहे हैं, तो मैं गुस्से में चिल्ला के उनको देख के कहता हूँ बस कर दो, एंड देन दे टेक अ स्टेप बैक, बिकॉज दे नो नॉट दे आर क्रॉसिंग द लाइन। ओके, बट अगर मैं ये हर चीज में बोलूंगा बस कर दो, या हर चीज में उनको थप्पड़ मारूंगा, तो क्या आएगा, उनको आदत पड़ जाएगी। मैं बोलूंगा सुन, आओ मारो और जाओ। सो एंगर इज अ वेरी पावरफुल टूल, यू हैव टू यूज इट वेरी केयरफुली। हर बार आप गुस्से में रहोगे तो लोगों को आपके गुस्से की आदत पड़ जाएगी। गुस्सा अगर कम आता है तब लोगों को ज्यादा डर लगता है, एंड ये राम जी अच्छी तरह समझते थे। थर्ड, डेलीगेट एंड ट्रस्ट। अभी आप देखेंगे ना, ये राम सेतु की ना एक बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है मेरा, आई एम श्योर आप लोगों ने भी नोट किया होगा, कि जब वो सेतु बन रहा होता है, मैंने आज तक कोई फोटो, कोई चित्र नहीं देखा है, जब वो सेतु बन रहा होता है राम जी ऐसे खड़े हैं हनुमान जी के साथ, या बाकी वानरों के, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, नहीं, राम जी हमेशा साइड में बैठे होते हैं, राम जी हमेशा साइड में बैठे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। It's a beautiful way to, get to your team member that you do your work, I trust you completely. I'm sitting there, you know, I'm accessible. अगर कुछ गड़बड़ होगी, मेरी मदद चाहिए तो मैं यहाँ पे ही हूँ, तो दूर जाने की जरूरत नहीं है, but I trust you completely, and he's sitting over there. And the best part is the manager is observing. The manager over here, Lord Rama, is observing everyone's contribution. I genuinely tell people, in the organization, from the doorman to the chairman, everyone is important. अगर आपके हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के लोग 4 दिन ऑफिस नहीं आएंगे ना, तब पता चलेगा उनका काम कितना होता है। Unfortunately, in the corporate world, unfortunately, the absence of the employee highlights the importance of the employer system.
The absence of the employee highlights the importance of the employee in this. Unfortunately, मतलब वो काम पे रहने किसी को नहीं पड़ी है, जैसे छुट्टी मांगता है ऐसे लगता है कि 300 करोड़ का धंधा वो आदमी चला रहा है बेचारा, और 2 दिन वो काम पे नहीं है, उसको 10 कॉल भी चले जाते हैं. It is unfortunate, but if you start appreciating everyone's contribution, they all will feel good about it. Squirrels को नहीं चाहिए था लॉर्ड रामा कि उनकी तारीफ करे, बट तारीफ कर दी तो उनको कितनी खुशी हुई. लाइफ इज शॉर्ट. आई एम श्योर कोरोना वायरस ने तो हमको और समझा दिया है. प्लीज स्टार्ट अप्रिशिएटिंग एवरीवन्स कंट्रीब्यूशन इन योर लाइफ. एवरीवन इज इंपॉर्टेंट, करेक्ट? सो एंड द मोर यू अप्रिशिएट, पीपल फील गुड अबाउट इट. नाउ आगे बढ़ते हैं. युद्ध चलता है. युद्ध जब आरंभ होता है तो दोनों सेनाएं मिलते लड़ते हैं. तो रावण के जितने भी ब्रदर होते हैं, सन होते हैं, सब युद्ध में मर जाते हैं. कुंभकर्ण कहो, इंद्रजीत कहो, सब एक एक करके सब मरना चालू हो जाते हैं. रावण खुद युद्ध में जाते हैं और रावण जिस तरीके से युद्ध कर रहे होते हैं, राम जी उनको फाइट करते हैं और राम जी उनको इंजर करते हैं और रावण के हाथों से शस्त्र गिर जाते हैं. उस वक्त विभीषण, सुग्रीव, लक्ष्मण कहते हैं मार दो, सामने खड़ा है रावण निहत्था, मार दो. राम जी कहते हैं मैं इसे नहीं मारूंगा. तो विभीषण कहता है प्रभु राम, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, निहत्था है रावण, मार दो उसे. राम जी कहते हैं इसीलिए नहीं मार रहा हूं क्योंकि वो निहत्था है, और इस युद्ध के कई नियम थे और उन नियम में से एक नियम था कि तुम निहत्थे पे वार नहीं कर सकते हो. तो उस वक्त सुग्रीव कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं, विभीषण कहते हैं ये मौका बार बार नहीं आएगा, ये रावण है, रावण को मार दो, इसका वध कर दो. आज अगर आप रावण को मार दोगे तो हम जाके सीता मैया को ले आएंगे. प्रभु राम कहते हैं कि कुछ भी हो मैं रावण को निहत्था नहीं मारूंगा. और रावण को कहते हैं कि तुम जाओ वापस, युद्ध की तैयारी करो, अपने घाव को ठीक करो और कल युद्ध पर वापस आना. That was the biggest insult of Ravan in his life and he could not sleep. And he thought कि मैं अब ऐसा क्या करूं कि मैं राम को हरा दूं. तो उस वक्त वो अपने एक भाई को याद करते हैं, अहिरावण. अहिरावण उनका एक भाई होता है, काल का वहां पे बादशाह होता है, वहां का राजा होता है, और वो ह्यूमन सैक्रिफाइस करता है देवी देवताओं को खुश करने के लिए. और रावण को पता चलता है कि उसको 100 ह्यूमन सैक्रिफाइस करने थे, तो उन्हें अहिरावण को लगता था कि वो इमॉर्टल हो जाएंगे. तो रावण उनको संदेशा भेजते, तुम 98 कर चुके हो, 2 रह गए हैं, 2 मैं तुम्हें देता हूं, वो भी राजकुमार है अयोध्या के, तुम उन्हें उनकी बलि चढ़ाओ तो तुम्हें तो इमॉर्टल का वरदान मिल ही जाएगा. तो अहिरावण विभीषण के भेष में जाते हैं, मायावी होते हैं बहुत बड़े. वो विभीषण के भेष में जाते हैं, राम जी और लक्ष्मण जी को रात को अंधेरे में जाके ले आते हैं. अब वहां पे विभीषण को पता चल जाता है कि अहिरावण उनको लेके चला गया है. वो कहता है हनुमान को कि अहिरावण सुबह सुबह सूर्य जैसे सूर्य उदय होगा उस वक्त वो जल्दी चढ़ाएगा, हमें अब जो भी करना है रात को करना है, तुम्हें अहिरावण को मार के राम जी और लक्ष्मण जी को वापस लेके आना पड़ेगा. तो हनुमान जी पूछते ठीक है मैं जाता हूँ, जाना किधर है और क्या करना है वो मुझे बता दो. वो कहते बट उसमें एक कठिनाई है, मैं तुम्हें एग्जैक्टली बता दूंगा तुम्हें किधर जाना है, पाताल में, किधर अहिरावण छुपा होगा और तुम्हें अहिरावण को मारना कैसे है. तो हनुमान जी पूछते इसमें कठिनाई क्या, अगर तुम सब कुछ बता रहे हो मैं करके आ जाता हूँ. वो कहते नहीं इतना आसान नहीं होगा अहिरावण को मारना. वो कहते हैं क्योंकि अहिरावण की जो जान है वो 5 दियों में है, 5 लैम्प्स में है, और वो 5 दिए अलग अलग जगह पड़े होते हैं, और तुम्हें वो 5 दियों को साथ में बुझाना होता है, तब जाके वो मरेगा. उसकी जान जो है वो 5 दियों में है. हनुमान जी कहते हैं ठीक है अभी आप बता दो किधर जाना है, क्या जाना है. विभीषण उनको पूरा रास्ता समझाते हैं, रास्ता बता देते हैं, और अहिरावण के उधर वो पहुंचते हैं. जैसे विभीषण जी ने बताया था वैसे ही वो अहिरावण के उस कमरे में पहुंचते जहाँ पे वो 5 दिए पड़े थे. वो 5 दियों को देखते हैं हनुमान जी 5 अलग जगह पे होते हैं. वो एक को फूंक मारते हैं, दूसरी तरफ देखते तो पहला वाला जिनको फूंक मारते दिया वापस जल जाता है. वो हर एक दिए को बुझाने की कोशिश करते हैं, और वो 5 दियो साथ में नहीं बुझते हैं. वो समझ जाते कि इसे मैं साथ में बुझा ही नहीं सकता हूँ, मैं कितना भी फास्ट हूं, मैं भले वायु का पुत्र पर मैं नहीं कर पाऊंगा. उस वक्त हनुमान जी डीप मेडिटेशन में जाते हैं, आंखें बंद करते हैं, डीप मेडिटेशन में जाके कहते हैं जय श्री राम. और जैसे वो जय श्री राम कहते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं, उनको 5 मुंह आ जाते हैं, और उस वक्त वो कहलाते हैं पंचमुखी हनुमान. अगर आप टेक्निकली देखेंगे ऑब्वियसली शिवा का अवतार है, भगवान है हनुमान जी, बट मैं सिर्फ एक मेटाफर टर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूं. उस वक्त हनुमान जी को
भगवान का दर्जा सबने दिया, तब तक वो राम के भक्त थे। बट जब पंचमुखी बनते हैं तो पंचमुखी हनुमान, सबको पता चलता है कि ये भगवान है। ये जो पहले हमने बात की थी एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन में जब कोई हमें बताता है क्या करना है, मोटिवेट होते हैं, रिवॉर्ड मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, अवार्ड मिलेगा, इंसेंटिव मिलता है, बोनस मिलता है, फॉरेन ट्रिप मिलता है, बट वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये होता है इंटरनल मोटिवेशन। Where there is a will, there is a way. The will needs to be stronger than the skill to be successful in life. Bigger the why, easier the how. क्योंकि हनुमान जी जानते थे कि अगर अब मैंने इन 5 दियों को नहीं बुझाया तो मेरे प्रभु राम मर जाएंगे, मेरे भ्राता लक्ष्मण मर जाएंगे, अब मुझे इन्हें बचाना ही है। उनका विल, इनका इतना बड़ा उनका मोटिवेशन था कि उनके अंदर से ही वो 5 मुंह आ गए और वो पंचमुखी हनुमान बन गए। सिमिलरली हमारी लाइफ में भी अगर आप देखेंगे, अगर आप हमारी लाइफ में भी देखेंगे, okay, so over there if you see कि अगर आप अंदर से कुछ करना चाहते हो, if you really want to do it, no one can stop you, no one can stop you, correct? So please focus on the why. Bigger the why, easier the how. Okay, bigger the why, easier the how. So focus on your why, क्योंकि आपके अंदर भी पंचमुखी हनुमान है, आपके अंदर ही भगवान है, सिर्फ हमको रियलाइज करना पड़ता है। चलिए, गुड इनफ। अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने तो आपको कह दिया कि रावण को फिर वो भेज देते हैं, क्योंकि वो रूल्स नहीं तोड़ना चाहते थे। अगले दिन रावण आते हैं, राम जी उनका वध करते हैं। जैसे वध हो जाता है उसके बाद सबसे पहले वो विभीषण को राजा बनाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने विभीषण को कमिटमेंट दिया था, जिस दिन मैं रावण को मारूंगा उसी दिन मैं तुम्हें वहां का राजा बना दूंगा। पार्टिसिपेंट ने पूछा था कि सर राम जी ने क्यों नहीं वहां पे रूल किया, राम जी ने विभीषण को क्यों बना दिया राजा? वो खुद भी तो राजा बन सकते थे, क्षत्रिय धर्म है, जो जगह पे आप जाते हो, जो राज्य को आपने हराया तो राज्य आपका हो गया। आई सेड इसके अंदर आप देखेंगे तो एक कॉर्पोरेट के लिए स्पेशली आज की डेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। लर्निंग ये है क्योंकि लॉर्ड, अभी आई एम जस्ट टेकिंग इन अ मेटाफर टर्म, ओके, सो लेट्स ट्राई टू डिकोड द लर्निंग ओवर हियर। लॉर्ड रामा रियलाइज्ड आई एम नॉट वन ऑफ देम, ओके, दे आर डिफरेंट। उनकी उठना बैठना सब तौर तरीके अलग है। विभीषण उनमें से ही एक है। अगर मैं उनका राजा बन भी जाऊंगा तो बहुत रेजिस्टेंस होगा, पॉइंट 1। सेकंड, मैं अयोध्या मेरा घर है, मुझे अयोध्या वापस जाना है। हाउ कैन आई डेडिकेट माय टाइम बिटवीन अयोध्या एंड लंका? एरोप्लेन तो है नहीं, व्हाट्सएप है नहीं, वीडियो कॉल है नहीं, तो मैं कैसे मैनेज करूंगा? अब उसके चक्कर में हो सकता है अयोध्या भी ठीक से मैनेज ना हो और मैं लंका भी ठीक से नहीं मैनेज कर पाऊं। थर्ड थिंग, मैं विभीषण को जब राजा बना देता हूं तो विभीषण एज इट इज अब मेरा डिसाइपल बन चुका है, मेरा डिवोटी बन चुका है, तो मैं जैसा चाहता हूं वो वैसा ही रूल करेगा वहां पे, वही पीस वही स्प्रेड वहां पे करेगा। सो व्हाई कांट आई एक्सपैंड माय लेट्स से मैनेज, rather than trying to be everywhere, let me hire the best of people who might important responsibility to take care of it. Such a beautiful gesture Lord Rama has done. थर्ड होता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, वन ऑफ माय मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। अब यहाँ पे रावण का वध करके राम जी वापस अयोध्या आते हैं। जैसे अयोध्या आते हैं, हम दिवाली मनाते हैं। अब वहां पे उनकी माता कौशल्या उन्हें कहती है कि राम, तूने रावण को मार के बहुत अच्छा काम किया, दुनिया भर में तेरा नाम हो रहा है, लोग अब तुझे सदियों के लिए याद रखेंगे, तूने रावण को मार दिया। राम जी हैरान, कहते बट माता मैंने रावण को नहीं मारा। अब माता हैरान, अरे तुमने रावण को नहीं मारा, बट सब कह रहे तुमने रावण को मारा। राम जी कहते किसने बोला मैंने रावण को मारा? मैंने रावण को नहीं मारा। माता कहती है अरे लक्ष्मण ने बोला तुमने रावण को मारा, सीता ने बोला तुमने रावण को मारा, हनुमान ने बोला तुमने रावण को मारा, सुग्रीव ने बोला तुमने रावण को मारा, और तुम कहते हो तुमने रावण को नहीं मारा। राम जी कहते नहीं, मैंने रावण को नहीं मारा। तो माँ कौशल्या कहती तो तुम ही बता दो किसने रावण को मारा। राम जी मुस्कुरा के कहते हैं उसके अहंकार ने उसको मारा, मैंने रावण को नहीं मारा। हनुमान ने कहा था सीता को वापस भेज दो, विभीषण ने कहा था सीता को वापस भेज दो, अंगद ने कहा था सीता को वापस भेज दो, कुंभकर्ण ने कहा था सीता को वापस भेज दो, मंदोदरी उनकी बीवी ने कहा था सीता को वापस भेज दो। सब ने उनको कहा कि सीता को वापस भेज दो, मैंने भी उन्हें कहा कि सीता को वापस भेज दो। अगर वो सीता को वापस कर देता तो मैं रावण को नहीं मारता। रावण का अहंकार था कि मुझे कोई नहीं मार सकता है, इसके लिए वो मरा, उसके अहंकार ने उसको मारा, मैंने उसको नहीं मारा।
Now, over here, if you see what an amazing, what a beautiful learning Lord Rama has shared, that at the end of the day, is the arrogance or the ego we have that will lead to a downfall. So, Bhagwan आपको सब कुछ दे, मान, सम्मान, इज्जत, success, glory, whatever you dream or whatever you desire, but at the end of the day, manage your arrogance. एक बुक है असुरा, उसमें मैंने पढ़ा था, बहुत ही ब्यूटीफुल एक कॉन्वर्सेशन बताया उसके अंदर. इट इज रिटन बाय बाय आनंद नीलकंठ, दैट बुक. उसके अंदर बताते हैं कि जो किंग बाली होते हैं, जो जिसका हम ओनम सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जो प्रहलाद के ग्रैंड चाइल्ड होते हैं, तो महाराज बाली जो होते हैं वो एक बार वापस आते हैं और देखते हैं कि रावण अब यहाँ का राजा बन चुका है, और रावण को मिलते हैं और रावण से सब बातें समझते हैं, क्योंकि वो असुरा के राजा थे पहले, और उनको वामन अवतार में विष्णु जी आके आशीर्वाद देते हैं कि तू बाताल का राजा बनेगा, बट हर साल तू एक बार आएगा अपनी प्रजा का देखने उनको क्या चाहिए. और वहां पे बाली महाराज आके देखते हैं रावण बन गया है, रावण से बात करते हैं, और वहां पे रावण को कहते हैं कि रावण तेरे सब गुण अच्छे, तेरे सब गुण अच्छे, शिव का भक्त है, ज्ञानी है, मेडिकल का देखो, मेडिसिन के देखो नॉलेज है, फिजिक्स, बायोलॉजी, यू नेम इट, एंड ही वाज अ मास्टर ऑफ एवरीथिंग. म्यूजिक भी अच्छा बजाते थे, डांस भी अच्छा करते थे, तांडव भी करते थे, रावण सूत्र भी बड़ा अच्छा लिखा उन्होंने शिव के डिवोशन में, सब कुछ उन्होंने किया है. बट तेरी सिर्फ एक चीज खराब है रावण, वो चीज को तू छोड़ दे. रावण पूछते क्या? बाली महाराज कहते तेरा अहंकार छोड़ दे रावण, बाकी सब गुण तेरे अच्छे हैं. रावण कहते उस वक्त कि मेरा अहंकार ही तो मुझे रावण बनाता है, अगर मैं अहंकार ही नहीं तो मैं रावण कैसा. और देखिए जिस चीज का उसको अहंकार था उसी चीज की वजह से रावण मर गया. तो दैट वाज द, यू कैन से, द गोल्डन डियर ऑफ रावण. आइडेंटिफाई योर गोल्डन डियर, द सूनर द बेटर. चलिए अब ये कॉन्वर्सेशन खत्म होती है. कमिंग टू द लास्ट स्टोरी. हनुमान जी एक बार राम जी के कदमों में बैठे होते हैं. हनुमान जी राम जी को कहते हैं कि प्रभु, आप जानते हो आपसे ज्यादा शक्ति किसमें है, आपसे ज्यादा बल किसमें है. अब राम जी बैठते हैं, हनुमान जी को देखते हैं और कहते हैं किसमें. अब नाउ जस्ट फ्रॉम रामास पर्सपेक्टिव आई एम थिंकिंग, ही मस्ट बी थिंकिंग कि मैं रावण को मार के आया हूं, अब मुझसे ज्यादा शक्ति किसमें. तो हनुमान जी को कहते हैं मुझे नहीं पता हनुमान कि मुझसे ज्यादा शक्ति किसमें. तो हनुमान जी कहते हैं सोचिए प्रभु, आपसे ज्यादा शक्ति किसी और में है, आपसे ज्यादा बल किसी और में है. तो आउट ऑफ इनक्विजिटिवनेस, एंड जस्ट आउट ऑफ इनक्विजिटिवनेस, लॉर्ड रामा चेक्स विद हनुमान, मुझे नहीं समझ में आता, तुम ही बता दो हनुमान कौन. तो हनुमान जी कहते हैं आपके नाम में, आपके नाम में आपसे ज्यादा शक्ति, आपके नाम में आपसे ज्यादा बल है. राम जी पूछते ऐसे कैसे हो सकता है हनुमान, शक्ति मुझ में है ना, मेरे नाम में कैसे होगी. तो हनुमान जी कहते हैं मुस्कुरा के, प्रभु जब मुझे जाना था लंका मैंने तो कहा जय श्री राम, और मैं लंका, जब आपको जाना था लंका आपको सेतु बनाना पड़ा. आप बताइए आपसे ज्यादा शक्ति आपके नाम में है कि नहीं. राम जी मुस्कुराते और गले लगाते हनुमान जी को. Now look at the confidence as a manager he has given to his subordinates, that I am taking the leap of faith. I'm taking a leap towards Lanka. मुझे जो भी कठिनाई आएगी मैं जानता हूँ you will take care of me. वैसे ही प्रभु राम का नाम जो है वही हमें शक्ति देता है, वही हमें कॉन्फिडेंस है, और किधर ना किधर हमारे मन में जो डर होता है, भय होता है, वो भी दूर चला जाता है, क्योंकि हम जानते हैं अगर हमारा मन सच्चा हो, हमारे इरादे नेक हो, कठिनाई जरूर आएगी, बट अगर हम राम पे भरोसा रखें, राम के नाम को जपे, तो प्रभु राम हमें सहायता करेंगे. नाउ ओवर हियर इफ यू सी, Lord Rama followed all the rules and regulation, and please be assured you will be tested. Honor your commitment, whatever commitment you have given to people. जैसे विभीषण जी को commitment दिया. Be humble, grounded, don't have arrogance, and at the end gain trust and confidence of your team member around you. अगर राम जी भगवान विष्णु एक मानव अवतार में, प्रभु राम के अवतार में आके हमें बता सकते हैं कि जीवन को कैसे हमें हैंडल करना. आई एम श्योर आप बोलेंगे बोलना आसान है, करना मुश्किल है, इसके लिए हर इंसान राम नहीं बनता, बट राम बनने की कोशिश तो हम कर सकते हैं. राम बनने की कोशिश तो हम जरूर कर सकते हैं. कुछ चीजें सीख के, कुछ चीजें अपनी आइडेंटिफाई करके जहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, छोटे छोटे स्टेप्स लेके वी कैन 100% डू दैट. आई एम श्योर अबाउट इट, इफ नॉट ऑल एटलीस्ट समथिंग. एंड
इंसिडेंट आई वुड लाइक टू शेयर. एक बार ना एक 2 घंटे का सेशन था विच वाज अ मोटिवेशनल टॉक बेस्ड ऑन द लर्निंग्स फ्रॉम आवर एपिक्स एंड एवरीथिंग. तो वो 2 घंटे का सेशन खत्म हुआ, कुछ 800 850 900 लोग होंगे, और वहाँ पे जो उनके बिजनेस हेड थे वो स्टेज पे आए, एंड यू नो आई बीन गोइंग टू देम फॉर कपल ऑफ इयर्स. तो बिजनेस हेड ने बोला कि ऋषि आई वुड लाइक टू एड्रेस द क्राउड. मेरा टॉक खत्म हो गया, मैंने ऑल योर्स, मैं साइड में खड़ा हो गया. तो बिजनेस हेड ने खड़े हुए बोले कि अगर तुम देखोगे रामायण से कुछ सीखा समझा, तो जब राम जी को हनुमान मिला तो पूरी उन्होंने लंका को हरा दिया, रावण की सब सेना को हरा दिया. मैं भी ये पूरी इंडस्ट्री को चेंज कर सकता हूँ, मैं भी सब कुछ जीत सकता हूँ, मुझे सिर्फ एक हनुमान चाहिए. बोलो यहाँ पे कौन बनेगा मेरा हनुमान? एंड एज टिपिकली पीपल स्टार्टेड शouting, मैं हनुमान, मैं हनुमान, मैं हनुमान, मैं हनुमान. एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ applause and all those things, and everything went. So the business head walked up to me, and very very a dear friend now. So he asked me, कि ऋषि आपको क्या लगता है, you are coming to a company for 2-3 years, इनमें से कौन हनुमान बन सकता है, कौन किसे मैं अपना हनुमान बनाऊं? तो मैंने, सर अगर आप बुरा नहीं मानोगे तो एक बात कहूं. बोलते कहो. मैंने, सर आप एक चीज भूल गए रामायण में, हनुमान ने राम को ढूंढा था, राम ने हनुमान को नहीं ढूंढा था. जिस दिन आप राम बन जाओगे आपको आपका हनुमान मिल जाएगा. पहले आप राम बन जाइए सर, आप हनुमान की खोज मत कीजिए, हनुमान अपने आप आ जाएगा. The issue is we want Hanuman, we want a lot of people in our life, but we forget पहले हमको राम बनना पड़ता है, फिर ही जाके हनुमान मिलता है. So on this note, I would like to close it over here. And one major learning that I had to share from Lord Rama's life, and this is my firm belief, this is my one of the biggest learning in my life that I've got from reading Ramayana again and again by speaking about Lord Rama, is that if you see the life of Lord Rama, it is full of challenges. छोटे से थे, ताड़का को मारना पड़ा, थोड़े बड़े होते शादी होती है, शादी के कुछ सालों के बाद उनको वनवास भेजा जाता है, 13 साल वनवास पे रहते हैं, सीता का अपहरण होता है, सीता को ढूंढने चलते हैं, 3000 किलोमीटर तक जाके लंका में उनको मिलती है, रावण का वध करके आते हैं, रावण का वध करके वापस आते हैं, तो फिर उनके ऊपर सीता मैया के ऊपर लगता है धोबी का आरोप कि हम इन्हें कैसे अपनी महारानी माने. अब क्योंकि उनको राम राज्य चाहिए था, सब कुछ ठीक ठाक चाहिए था, उन्होंने सीता मैया को भेज दिया, सीता मैया को छोड़ देते हैं, और फिर सीता मैया उनको वापस मिलती है. जब पता चलता है कि लव कुश उनके बच्चे हैं, जाके सीता मैया को वाल्मीकि की कुटिया में मिलते हैं, तो सीता मैया धरती में चली जाती है. राम जी इस धरती पे एज पर वाल्मीकि रामायण 10,000 साल थे, 50 to 60 इयर्स के थे जब सीता मैया उन्हें छोड़ के चली जाती है. दैट मीन्स फॉर 9,950 इयर्स वो अकेले थे. उनके पिता की 3 बीवियां थी, वो भी शादी कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया. एक पत्नी का जो वचन था उन्होंने माँ लक्ष्मी को दिया था, पूरे जीवन भर उन्होंने निभाया. बट एक चीज जो मुझे सीखने को मिली वो ये थी, एंड दैट हैज बीन माय बिगेस्ट लर्निंग, professional glory will come at a personal cost. Professional glory will 100% come at a personal cost. अगर आप लोगों का उद्धार करना चाहते हो, आप जीवन में कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हो, बड़ा कार्य करना चाहते हो, तो आपके घर में किसी ना किसी को उसका भुगतान करना ही पड़ेगा. किसी ना किसी को उसका भुगतान करना ही पड़ेगा. You will never have both glories of the world. Your personal glory, if you want, it will come at a professional cost. But if you want to do something beautiful in your professional life, please remember, my friends, it will come at a personal cost. It is one of my biggest learning from Ramayana. अगर राम राज्य चाहिए है तो राम और सीता को अलग होना पड़ा, राम जी को अंदर ही जलना पड़ा, तब जाके राम राज्य बना. Correct? So my point is, please be clear what you want in life. It's a totally different, we can have a session on that between Lord Rama, Sita, and all those other parameters of, Ramayana. But just to, give you a nutshell, professional glory comes at a personal cost. You need this in mind. Now, one more point that you would like to highlight, one more point that I would highlight is, there's a very beautiful एसोसिएशन यंग इंडियंस विच इज ऑफ CII, और मैं सिलीगुड़ी में था. वहां पे ना एक हमारा सेशन था इंडियन एपिक्स के ऊपर, और वहां पे एक लेडी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था ऑडियंस में से. एट द एंड ऑफ माय टॉक शी सेड कि ऋषि, these are her words, so please try to understand the context what she's trying to say. She said कि जो चीज सीता मैया ने की वो आज हर एक हिंदुस्तान की नारी से एक्सपेक्ट किया जाता है, और वो है सैक्रिफाइस. वो हर एक हिंदुस्तान की नारी से एक्सपेक्ट किया जाता है, वो है सैक्रिफाइस. अगर मैं कुछ भी सोचती हूँ, चाहती हूँ, तो मेरी सास कहेगी सीता ने देख क्या किया.
अगर मैं कुछ करना चाहूंगी तो मेरा पति कहेगा देख सीता ने क्या किया। मुझे बार बार सीता के बारे में बताया जाता है और मुझसे सैक्रिफाइस कराया जाता है। जो सीता मैया ने किया वो मैं आज क्यों करूं, जो सीता मैया ने किया वो आज मैं क्यों करूं। एंड आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग क्वेश्चन आई हैड, कि सीता मैया ने सब कुछ किया, सीता मैया ने सैक्रिफाइस किया, तो मैं सैक्रिफाइस क्यों करूं। मैं सैक्रिफाइस करना नहीं चाहती हूं, मैं अपनी जीवन को जीना चाहती हूं, मैं किसी को माफ नहीं करना चाहती हूं। उस वक्त मैंने उन लेडी को हाथ जोड़ के कहा कि यू नो आई वुड लाइक टू गिव यू एन आई वुड लाइक टू रिप्लाई, बट बिफोर आई से दिस आई वुड लाइक यू टू प्लीज टेक दिस एज अ कॉन्टेक्स्ट, डोंट टेक इट लिटरली। Okay, we'll take Sita Maiya as a what you called as an energy right now. Okay, sacrifice is an energy, so I'm taking Sita Maiya as an energy. I'm not talking about any girls or female. Okay, so just take it in the context. Those who are listening, those who watch this, please get it in the context. I said ke माते एक बात आप ध्यान में रखना, जिस घर में सीता है उस घर में रामायण है, जिस घर में द्रौपदी है उस घर में महाभारत है। आपको अपने घर में क्या चाहिए, रामायण चाहिए या महाभारत चाहिए, वो आपको देखना है। सीता मैया ने सैक्रिफाइस किया बट राम राज्य बना। सीता मैया ने सैक्रिफाइस किया, लव कुश को अपने पिता मिले, उनका जीवन सफल हुआ। द्रौपदी को रिवेंज चाहिए था, द्रौपदी को रिवेंज भी मिला, बट उनके खुद के बच्चे उस युद्ध में मर गए। कर्मा अजीब तरीके से चलता है, जब कोई सैक्रिफाइस करता है तब दूसरे का उद्धार होता है, जब कोई रिवेंज लेता है तो दूसरा तो मरता है बट वो खुद भी जलकर मर जाता है। द्रौपदी stands for revenge, Sita stands for sacrifice. Whatever you want to do, the choice is always yours. The choice is always yours. एक बार मुझे किसी देयर इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन ख्याति, और हमने जब बुक लॉन्च किया था तब उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि ऋषि कैन यू डिफाइन रामायण एंड महाभारत इन वन लाइन, can you explain to someone like me. She said that कि मैं महाभारत फॉलो नहीं करती हूँ, मैं रामायण फॉलो नहीं करती हूँ। अगर तुम्हें मुझे सिर्फ रामायण और महाभारत एक दो शब्दों में समझाना पड़ेगा या तुम्हें सिर्फ एक लाइन में समझाना पड़ेगा तो तुम कैसे समझाओगे। मैं बोला कि अगर आपने महाभारत में एक भगवत गीता होती है जहाँ पे एक कॉन्वर्सेशन होता है बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुन। नाउ इन दैट एंटायर भगवत गीता देयर आर 4 प्रिंसिपल कैरेक्टर्स इन्वॉल्वड इन दैट. First is Lord Krishna, obviously Arjun second. Third is Sanjay who gets blessing from Ved Vyas, Maharishi Ved Vyas, जो देख सकते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है और वो महाराज धृतराष्ट्र को बताते हैं। तो 4 कैरेक्टर्स हैं, कृष्ण, अर्जुन, संजय एंड महाराज धृतराष्ट्र। ओके, महाराज धृतराष्ट्र का सिर्फ एक वर्स है पूरे उस भगवत गीता में, बाकी पूरा सुनते हैं भगवत गीता, किधर भी बोलते नहीं है, वो सिर्फ सुनते हैं भगवत गीता। और वो एक वर्स है ओपनिंग वर्स ऑफ दैट भगवत गीता, दैट इज द ओपनिंग वर्स। मतलब 18 चैप्टर्स का भगवत गीता है और पूरे 18 चैप्टर में वहां पे धृतराष्ट्र महाराज ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सुना, बट एक स्टेटमेंट है उनका और उनमें वो कहते हैं, फर्स्ट ओपनिंग पैरा जो आता है और वो कहते हैं कि हे संजय मुझे बताओ क्या हो रहा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, मैदान में मेरे पुत्र और पांडु पुत्र के बीच में। हे संजय मुझे बताओ क्या हो रहा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, वहां पे वॉर फील्ड पे मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र के बीच में। ऐसा उसने महाभारत रामायण समझा दी। तो ख्याति ने मुझे पूछा कैसे समझाई, मैंने आपने समझे नहीं, उन्होंने कहा मैंने आपके ख्याल से उन्होंने कहा क्या कहा, वो कहते उन्होंने बोला मुझे बताओ क्या हो रहा है वहां पे कुरुक्षेत्र में बिटवीन द पार्टीज आर स्टैंडिंग ओवर देयर टू फाइट। मैंने एग्जैक्टली आपने उनका स्टेटमेंट ध्यान से नहीं सुना, मैंने कहा उन्होंने क्या कहा, हे संजय मुझे बताओ क्या हो रहा है मेरे पुत्र में और पांडवों के पुत्र के बीच में। उन्होंने अब डिफरेंशिएट कर दिया अपने आप को और पांडु के बच्चों को। युद्ध के पहले वो कहते थे मेरे अनुज के पुत्र है, युद्ध के वक्त वो कहते हैं कि ये पांडु के पुत्र है। ये अब उन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया है। जब तक मेरे भाई का बच्चा मेरा बच्चा है तब तक घर में रामायण है, जब मेरे भाई का बच्चा होगा उस घर में उस वक्त महाभारत शुरू होगी। रामायण और महाभारत में थोड़ा ही अंतर है, सैक्रिफाइस, कंपैशन, लव, फॉरगिवनेस। महाभारत में रिवेंज है, सब कुछ है। आप अपने परिवार को अपना समझिए, सैक्रिफाइस कीजिए एंड आई थिंक रामायण विल सर्वाइव। Thank you so much for your time. Thank you so much for your energy. Any questions, anything, please let me know. This is the first time I guess I'm right on time. So, otherwise I always extend.
So these are my connect. I'm available on most of the social media: Facebook, Twitter, Insta, YouTube, WhatsApp. I'm highly active. Quora, a lot of articles have been written over them. These are my connect. We also have every day a quiz on the status of Facebook and Instagram, so you can connect over there, because we have realized that the youngsters want to connect. They want to understand about our epics, but they want it in a learning pill. तो हम छोटे छोटे learning pills हम share करते हैं every day. If you can like our pages on Instagram, Facebook, Twitter, it would be great. And thank you so much for your time and energy in listening. So, and thank you so much for the good feedback in the chat box. Thank you so much. Yes, Rishikesh sir, all yours. I think it was a very good session whereby not only the historical background of Ramayana was brought into place, but also the way you linked it with the management issues and how it has to be approached and the mindset and how basically a team should be built. That is, I think, the core learnings of this entire session. And you have to lead by an example. You have to set by an example in order to be successful. I'll now would like to express my profound gratitude to Rishi Nanda. Thank you very much, Rishi, for agreeing to come and speak today and share your valuable wisdom with us. And I'm very sure it has not been acquired over a year, but it would have taken years and years of not only reading, understanding, and devoting lot of time. Your session was very interesting. It was very knowledgeable, very thought-provoking in what you have stated today. Such complex matters you briefed us all, which was simple as drinking of glass of water and easy to understand as breathing. At the same time, I would like to thank all you wonderful participants. Please do keep following us in the Facebook page Udaan Saluters and YouTube channel Rishikesh Vyas. Please do visit us tomorrow at 6 p.m. for session on SOQUOS notice, reply and strategies with SEBI and SAT. Very soon, some big and surprising announcements are coming. So please keep on following us on the social media. At the same time, I think today's session, just for the matter of statistics, there have been more than 3,000 views in Facebook. People were viewing us. So Rishi, it was a blockbuster session. And I think Lord Ram has really blessed you for today's session. And I'll also request participants that every one of you have our email ID udaansaluters@gmail.com. So if you have any specific sessions to be covered, please do let us know. And at the same time, for the benefit of the audience, today's session as well will be available in the Udaan Saluters page in the Facebook. At the same time, it will also be in the subsequent coming days. It will be available on the YouTube channel Rishikesh Vyas. Thank you very much to all of you. Thank you very much. Jai Shri Ram. Jai Shri. Thank you.